السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ وہ 5 کا یہ پارٹ 10 ہے اور یہ سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہے۔ رحمان صوفے پر آرام سے بیٹھے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ ٹینا اور اکشے اس کے سامنے صوفے پر سر تھامے بیٹھے تھے۔ آئی کانٹ لیو۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد ٹینا کی صدمے میں ڈوبی آواز گونجی، تم نے کہا تھا تم صرف اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، تو پھر یہ اکشے بے یقینی کی آخری ہے۔ تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کہا ہے؟ راہل رحمان، محمد رحمان، ٹینا کی بات پر رحمان نے قدرے اطمینان سے کہا، تم ہوش میں ہو؟ اکشے غصہ ہوا، اب تو ہوش میں آیا ہوں، مسکرا رہا تھا رحمان۔ ٹینا کچھ کہتے کہتے خاموش ہوگی۔ Now it's your turn۔ رحمان کی بات پر دونوں چونکے۔ What do you mean؟ اکشے نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا، میں نہیں چاہتا جنت میں میں اکیلا جاؤں، کسی نے کندھے جھکائے کہا، کیا مطلب ہے راہل؟ اکشے صوفے سے اٹھا، ٹینا تم نے اسلام کے بارے میں اتنا جانا کہ تمہیں نہیں لگتا سچ کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ٹینا ٹھٹکی، ٹینا کیا تم ٹینا سے توبہ نہیں کرنا چاہتی؟ مہمان آر یو مید؟ ٹینا گھبرائی، تم بھی تو اسلام کے بارے میں جاننے میں ایکسائٹیڈ تھی، تم نے تو مجھ سے قرآن بھی سیکھا، تو اس کا مطلب میں اسلام قبول کر لوں؟ اس نے بھویں چڑھائی۔ ٹینا ایک بار سمجھو۔ رحمان بضد تھا، رحمان اسلام ایک بہت خوبصورت مذہب ہے، میں جانتی ہوں، پر اگر ہمارے پیرنٹس کو پتہ چلا تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ وہ ڈر رہی تھی۔ تم دوسروں کو مت سوچو، صرف میری بات پر غور کرو۔ نو رحمان۔ ٹینا گھبرائی سی اٹھی، تم ڈر کیوں رہی ہو؟ رحمان بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اکشے نے ٹینا کو دیکھا جس کے چہرے پر گھبراہٹ پہنچی تھی۔ میں ڈر نہیں رہی۔ اس کے بعد لڑکھڑائی تھی، تمہیں پتہ ہے تم کیوں ڈر رہی ہو؟ تمہیں ڈر ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہیں تم وہ کرنا چاہو، کیونکہ تمہارے دل میں بھی یہی ہے۔ اسٹاپ رحمان، ٹینا چلائی، تمہارے پیرنٹس تو تمہاری شادی پر نیو یارک چلے جائیں گے، پھر تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ رحمان اسے جھنجھوڑ آتا ہوا، یہ چھوٹا پیسہ نہیں ہے، وہ روحان سی ہوئی، سوچ لو، وقت ہے، میں جو جانوں گا وہ تمہیں بتاؤں گا، سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا۔ رحمان نے اپنی بات مکمل کر کے اکشے کو دیکھا۔ نو نو نو۔ اس نے دیکھنے پر اکشے سر ہلاتا پیچھے ہوا۔ ٹینا کشمکش میں متلا زبردستی نہیں کر رہا، اسلام زبردستی نہیں دل سے قبول کیا جاتا ہے۔ رحمان نے رسان سے کہا، تم پاگل ہو، میں نہیں۔ اکشے چبا کر بولا، تم نے قرآن سنا تھا نا، کیسا ہے؟ رحمان نے بات بدلی، اکشے کو قرآن یاد آیا، جیسا بھی ہے وہ مجھے اس سے کیا؟ وہ نظریں چراتے ہوئے کرایا تھا، کچھ دن میں سب مسجد چلو، اس کے بعد جو تمہارا فیصلہ۔ رحمان بات ختم کرتا بیٹھ گیا، میں نہیں چاہوں گا۔ اکشے چلا، اسے نہیں پتا اسے اتنا غصہ کیوں آیا تھا، صرف کچھ دن۔ رحمان نے اس سے چلانے کا سر لیے بنا التجایا کہا، نیور، ایجے کے لیے اس کی خواہش تھی۔ رحمان نے ایموشنل بلیک میل کرنا چاہا۔ اکشے خاموش ہو گیا، وہ چاہتی تھی ٹینا ہم سب اسلام کو جانے، اور وہ دوبارہ ٹینا کی طرف مڑا جو ہکا بکا بیٹھی تھی۔ کیا تمہیں اسلام نہیں پسند؟ رحمان نے اس کی آنکھوں میں جھنکا، پسند ہے مگر کچھ نہیں ٹینا۔ رحمان نے اسے ٹوکا، کچھ دن میری بات سنو، اس کے بعد جو تمہارا فیصلہ۔ رحمان نے ہاتھ کھڑے کیے، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، تبھی رام دروازہ کھلتے سر اندر آیا تھا۔ راہل میں کیا سن رہا ہوں؟ اندر آتے ہی وہ برس پڑا، آہستہ بات کرو سر۔ رحمان نے ناگواری سے کہا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ سر اس کی بات اگنور کرتے چلایا، یہ میری زندگی میں جیسے مرضی میں جیسے بھی گزاروں۔ رحمان بھی غصے سے چلایا تھا، گائز ریلیکس، بیٹھو یہاں۔ ٹینا نے نرمی سے کہتے صوبے پر بیٹھنے کا سر دندناتا ہوا بیٹھ گیا۔ رحمان کی سگریٹ اسٹرے میں پڑی خاموش ہو چکی تھی۔ اس نے دوسری جلائی، ساتھ ہی ایک لمبا سانس اندر کھینچا۔ تم تو کہہ رہے تھے صرف اسلام کے بارے میں جاننا ہے، پر یہ نہیں کہا تھا اسے قبول ہی کر لو گے۔ سر نے آواز کو دھیما رکھتے سخت لہجے میں کہا، یہ وہ جملہ تھا جو رحمان صبح سے کئی بار سن چکا تھا، جو اسلام کو ایک بار جان لے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا، اور میں نے تو ابھی اسلام کا آئی بھی نہیں جانا، پھر بھی مجھے ہدایت مل گئی۔ آئی کانٹ بلیو۔ سر نے سر دائیں بائیں ہلایا، تم نے کبھی آگ کی تپش محسوس کی ہے؟ رحمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وٹ نونسنس تم؟ سر کی آواز بیچ میں ہی رہ گئی جب رحمان کی جلتی سگریٹ اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا نشان چھوڑ چکی تھی۔ سائیکو! سر زور سے چلاتا ایک جھٹکے سے اٹھا۔ اکشے اور ٹینا بھی بکھلائے، محسوس ہو رہی ہے؟ رحمان یوں ہی بیٹھا سگریٹ پھونکتا پوچھنے لگا، تم پاگل ہو گئے ہو؟ سر ہلک کے بل چلوایا، اتنی سی جلن برداشت نہیں ہوئی، جب مر جاؤ گے تب تمہیں پورا کا پورا جلایا جائے گا، تب کیسے برداشت کرو گے؟ سر پانی کے جگ میں پورا ہاتھ ڈالے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کل تمہیں ساتھ لے کر مسجد جاؤں گا، تیار رہنا۔ اکشے کو سختی سے کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ تینوں ہکا بکا کھڑے رہ گئے تھے۔ اگلے دن رحمان اکشے کو اپنے ساتھ لے کر مسجد گیا۔ عثمان نے ہمیشہ کی طرح مسکرا کر ان کا استقبال کیا۔ اکشے کو اپنے ساتھ وضو کروا کر وہ اسے لیے ایک طرف آ کر بیٹھ گیا۔ عثمان نے قرآن مجید رحمان کو دیا، جسے اس نے بہت احترام کے ساتھ پکڑا۔ رحمان نے قرآن کو چوم کر پڑھنا شروع کیا۔ اکشے ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا، وہ ایسے پڑھ رہا تھا جیسے برسوں سے قرآن پڑھتا آیا ہو۔ سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے کے بعد اس نے قرآن اکشے کو دیا۔ اکشے حیرانگی سے کبھی قرآن کو بھی اسے دیکھتا، پکڑو۔
अक्षय ने ट्रांस की कैफे में कुरान पकड़ा। पढ़ो। अक्षय ने इसे ऐसे देखा जैसे वो कोई मजाक कर रहा हो। ईमान ने इसकी शहादत की उंगली पकड़कर लफ्जों पर रखी। अक्षय को करंट लगा था। अक्षय ने अटकते अटकते ईमान के पीछे बिस्मिल्लाह पढ़ी थी। पूरी सूरत फातिहा पढ़ाने के बाद उस्मान ने इसके हाथ से कुरान ले लिया। आओ तुम्हें नमाज सिखाता हूँ। ईमान ने मुस्कुरा कर इसके कंधे पर हाथ रखा। अक्षय ने नफी में सर हिलाया। सिर्फ सीखनी है, कौन सा पढ़नी है? ईमान ने इसे अपने साथ ही खड़ा किया। नमाज सिखाने के बाद ईमान ने मुस्कुरा कर इसे देखा जिसका रंग बूढ़ा हुआ था। जो वहां जाकर बैठ जाओ। अक्षय चलता हुआ वापिस इसी जगह जाकर बैठ गया। ईमान अजान के लिए खड़ा हो गया। अक्षय सदमे की कैफियत में इसकी पुश्त देख रहा था। मस्जिद में मर्दाना शुरू हो गया। अजान देने के बाद रहमान दूसरी सफ में आकर खड़ा हो गया। अक्षय ने देखा वो नमाज पढ़ रहा था। राहुल रहमान बनकर नमाज पढ़ रहा था। एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ जो शायद जमात के लिए लेट हो गया था। मस्जिद में दाखिल होते ही इसकी नजर अक्षय पर गई थी। आदमी अजीब सी नजरों से उसे देखा, फिर खामोशी से जाकर सफ में खड़ा हो गया क्योंकि इमाम ने दोबारा लफ्ज पर कहकर हाथ बांध लिए थे। आदमी के यूं देखने पर अक्षय को बेइंतहा शर्मिंदगी महसूस हुई। वो शर्मिंदा क्यों हुआ था? वो खुद इस बात से अनजान था। इसे छोड़कर सब नमाज पढ़ रहे थे। इस वक्त उसका दिल किया इससे भी इस सब में शामिल होना चाहिए। अपनी कैफियत से वो खुद ही हैरान था। नमाज के बाद सभी दुआ के लिए हाथ उठाए बैठे थे। नमाज के बाद सब मस्जिद से निकलने लगे। इन्हें ऐसे जैसे इन्हें कहीं जाने की जल्दी हो। उस्मान और रहमान सबसे आखिर में उठे थे। चले। रहमान ने मुस्कुराते हुए गुमसुम बैठे अक्षय से कहा। अक्षय ने चौंक कर इसे देखा। आज इसे रहमान के चेहरे पर एक अलग सी चमक दिखाई दी। अक्षय खड़ा हो गया। रहमान उस्मान से गले मिला। रहमान से मिलने के बाद उस्मान ने आगे बढ़कर अक्षय को गले लगाया। इसकी अतर की भीनी भीनी खुशबू अक्षय की नजरों से टकराई। आते रहेगा। उस्मान ने इससे दूर होते कहा। अक्षय ने ट्रांस कैफियत में सर हिलाया था। अक्षय कार में खोया खोया सा बैठा था। रहमान ने इससे कोई बात नहीं की, बस वक्फे वक्फे से इस पर एक नजर डाल लेता। क्या तुमने इसे नमाज पढ़ते देखा? टीना को चुटके पर झटके लग रहे थे। रहमान बालकनी में खड़ा सिगरेट फूंक रहा था। रोज के जाने के बाद इसकी आदत मजीद बढ़ गई थी, वरना वो रोज से छुप कर कभी कभी सिगरेट पी लेता था। रोज को सख्त नापसंद थी। हाँ, मैंने खुद देखा। अक्षय ने सरगोशी की। रहमान बालकनी में खड़ा मुस्कुरा रहा था। इन दोनों की बातों का मौजू वो जानता था। टीना, तुम्हें पता है? अक्षय ने खोए खोए अंदाज में कहा। वहाँ मस्जिद में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। जब जब लोग झुक रहे थे, सजदा कर रहे थे, तब तक मेरे दिल की रफ्तार बढ़ रही थी। अक्षय, तुम? टीना हैरान सी रही। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और दोनों ही नजरें चुरा गई कि कहीं दोनों ही एक दूसरे की आंखों से दिल का हाल ना पढ़ लें। तुमने कभी कुरान पढ़ा है? टीना ने नबी में सर हिलाया। मैंने पढ़ा है आज। टीना की आंखें हैरत से फैल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। टीना ने ठहर ठहर कर पढ़ा। इसकी आंखें मजीद फैल गई। मेरे मौला करम हो करम। अभी दोनों मजीद बोलने लगे जब एक खूबसूरत सी आवाज टकराई। दोनों ने चौंक कर बालकनी की तरफ देखा। मेरे मौला करम हो करम। दोनों अपनी जगह से उठे। तुझसे फरियाद करते हैं हम। दोनों ने एक दूसरे को देखा। तुझसे फरियाद करते हैं। वो आगे बढ़ रहे थे। जिनकी अजीब दो राहें बढ़ा खड़ी हुई थी। आगे घूमा था, पीछे खाई। पर रहमान थोड़ी सी मुसाफा तय करके दाएं बाएं से निकल आया था। इसने आगे पीछे नहीं, दाएं बाएं देखा था। मेरे मौला करम हो करम। नेकियों से मुझे जोड़ दे तू। दोनों का दिल पसलियां तोड़ कर बाहर आने को था। फिर मेरा रुख इधर मोड़ दे तू। सिगरेट जमीन पर गिरी खामोश हो रही थी। ऐसा रास्ता मुझे तो दिखा। रहमान। टीना ने करीब जाकर से पुकारा। आवाज एकदम बंद हो गई। वो पलटा था। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। दोनों ने हैरानगी से एक दूसरे को देखा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। दोनों ने अपने रबों को सख्ती से बीच लिया। गोया इन्हें कच्चा हो जो रहमान कह रहा है वो दोहरा न दे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वो वहीं अटका था। जैसे इसे यकीन हो दोनों की जुबान कलमा पड़ेगी। दोनों के लब सख्ती से आपस में बस्ते, मगर इनका दिल बोला था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और साथ ही जुबान भी। रहमान मुस्कुराया था। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दोनों साबित रह गए। रहमान नाम आंखों से मुस्कुरा रहा था। अरहम तौबा। दोनों का सत्ता टूटा। क्या तुम मानते हो अल्लाह एक है? वो दो कदम आगे आया। इसके सिवा कोई मबूद नहीं। मजीद दो कदम नजदीक आया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। वो इनके बिल्कुल सामने खड़ा था। दोनों की जुबान बंद थी मगर आंखें कुछ कह रही थी। रहमान थोड़ा आगे झुका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों के लब हिले थे। ला इलाहा इल्लल्लाह। वो वैसे ही झुका खड़ा था। ला इलाहा इल्लल्लाह दोनों की जुबान के साथ दिल भी बोल रहा था। मोहम्मद रसूलुल्लाह। रहमान सीधा हुआ। मोहम्मद रसूलुल्लाह। वक्त जैसे थम सा गया। सांस जैसे अटक सी गई थी। आंसू जैसे निकलने को बेताब थे। दिल जैसे धड़कना भूल गया था। क्या तुम मानते हो? दोनों ने एक साथ सर हिलाया था। क्या तुम इसके साथ किसी को शरीक ठहराते हो? इस बार गर्दनें नफी में हिली थी।
کیا تم دل سے اسلام قبول کرتے ہو؟ اللہ پر ایمان لا کر مسلمان ہوتے ہو؟ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ہاں، ہم دل سے ایمان لائے ہیں۔ دونوں کی زبان سے الفاظ ایک ساتھ ادا ہوئے تھے۔ پیچھے سے اندر داخل ہوتا سر وہیں رک گیا۔ کیا تم دل سے مسلمان ہوئے ہو؟ ایک مہمان نے سر پر نظریں ٹکائے دوبارہ پوچھا۔ ہاں، ہم دل سے مسلمان ہوتے ہیں۔ ہاں، ہم نے دل سے اسلام قبول کیا ہے۔ سر بے یقین سا وہیں جم گیا۔ مبارک ہو۔ مہمان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے تھے۔ تبھی پیچھے کھڑے سر نے حرکت کی، طوبا کے بازو کو پکڑے، جھٹکے سے اس کا رخ موڑے، ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ طوبا اس اچانک آنے والی افطار پر بکھلا گئی۔ ارحم اور مہمان بھی وہیں جم گئے۔ طوبا منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے سر کو دیکھ رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ تم جانتی بھی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ وہ ایک دم دہرا تھا۔ کیا ہے کیا اسلام میں جو تم لوگ یوں پاگل ہوئے جا رہے ہو؟ وہ اللہ کے بل چلا رہا تھا۔ طوبا کا بازو اس کے ہاتھ میں تھا۔ سر چھوڑو اسے۔ مہمان نے آگے بڑھ کر سر کے ہاتھ سے طوبا کا بازو آزاد کروایا۔ اسے اس رات کا واقعہ یاد آیا تھا، پر فرق صرف اتنا تھا، طوبا کی جگہ پر عروج تھی اور سر کی جگہ وہ خود۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ان سب کا فیوچر تم نے تباہ کر دیا۔ سر نے شہادت کی انگلی اٹھائے رحمان کی آنکھوں میں جھانکتے درشتی سے کہا۔ بی ان یور لمٹ سر، رحمان نے ضبط کرتے چھپا کر کہا۔ کون سی لمٹ؟ لمٹ تو تم لوگوں نے کراس کی ہے۔ طوبا ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ گائز اسٹاپ اٹ۔ اور ہم دونوں کے درمیان حائل ہو۔ دونوں خونخوار نظروں سے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ سر کی نظر طوبا پر گئی جس کے ہونٹ سے خون نکل رہا تھا۔ سر کو ایک دم اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ٹینا، وہ فکر مندی سے اس کی طرف بڑھا۔ طوبا کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ وہیں رک گیا۔ ٹینا، اس نے بے یقینی سے پکارا۔ ٹینا نہیں، طوبا نام ہے میرا۔ وہ اپنے آنسو پوچھتی چلا کر بولی۔ سر ڈھکا بکا اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ رحمان اور ارم خاموشی سے کھڑے تھے۔ ٹینا آئی ایم سوری۔ دل شرمندگی سے اس کی طرف بڑھ کر اس کا خون صاف کرنے لگا۔ طوبا نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹکا دیا۔ جھٹکا تھا ٹینا، وٹس رانگ؟ وہ غصے سے چلایا۔ دور رہو مجھ سے۔ وہ بنا سلیے سرد مہری سے بولی۔ ٹینا، ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ سر نے اپنا لہجہ مبارک پہ پوچھا۔ تمہارا چھونا مجھ پر حرام ہے۔ طوبا 2 قدم پیچھے رہتی بولی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ سر بے یقینی کی آنکھیں رائیوں میں تھا۔ ہاں، ہوش میں ہوں، اور ابھی تو ہوش آیا ہے۔ وہ گردن اکڑ کر بولی۔ ٹینا لسن۔ سر دوبارہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہیں رک جاؤ سر، ٹینا نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ سر کے بڑھتے قدم وہیں تھم گئے۔ کیا تم مجھ سے پیار کرتے ہو؟ اس پار سے چہرے کے ساتھ پوچھنے لگی۔ آف کورس میں تم سے پیار کرتا ہوں، سر نے جھنجھلا کر کہا۔ تو سن لو، میں ابھی مسلمان ہوں، شریعت کے مطابق میں تم سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ تم ایک ہندو ہو۔ ایک مسلمان مرد ایک ہندو عورت سے شادی کر سکتا ہے، مگر ایک مسلمان عورت ایک ہندو مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس پار سے چہرے کے ساتھ کہتی جہاں سر کے سر پر بم گرا گئی تھی وہیں دونوں کو حیرت مبتلا کر گئی۔ مہمان اور منہ کھولے سے دیکھ رہے تھے۔ تم؟ سر نے کچھ کہنا چاہا، جب طوبا نے اسے ٹوک دیا۔ میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، وہ سنجیدگی سے کہتی، منہ پھیر دی۔ تو ٹھیک ہے، تمہیں تمہارا مسلمان ہونا مبارک ہو، گڈ بائے۔ سر دکھ اور غصے کی ملچلی کیفیت میں کہتا دندناتا ہوا وہاں سے نکلا تھا۔ اس کے جاتے طوبا نے کرب سے آنکھیں میچی۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ نڈھال سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ دونوں یکٹکی سے دیکھ رہے تھے۔ طوبا کی ٹیبل سے ٹیشو اٹھاتے ان پر نظر پڑی۔ کیا ہوا؟ تمہیں کیسے پتا؟ دونوں کی حیرت میں ڈوبی آواز۔ کہا تو ہے اسلام کے بارے میں بہت کچھ جانا ہے، سارا دن گھر پر رہ کر یہی کام تو کرتی تھی۔ طوبا نے ہونٹ سے رستہ خون صاف کرتے کہا۔ دونوں اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے۔ جب سے ایجے گئی ہے تب سے دل اداس رہتا، کہیں چین نہیں ملتا تھا، چرچ میں بھی نہیں۔ پر جب ہم نے اسلام کو جانچنا شروع کیا تب میں نے تلاوت قرآن پاک سنی۔ یقین مانو جب میں قرآن سنتی تب مجھے سکون محسوس ہوتا۔ وہ آنسوں کے درمیان بتا رہی تھی۔ دونوں خاموشی کی چادر اوڑھے سن رہے تھے۔ پہلے مجھے لگا اسلام بہت مشکل مذہب ہے، لیکن جیسے جیسے جانتے تھے ویسے ویسے سمجھتے تھے اسلام میں تو سانس لینے پر بھی ثواب ہے، کسی کو پیار سے دیکھنے پر بھی نیکی ملتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیز پر ثواب ہے۔ وہ مسکرائی۔ میں جب بھی اسلام کے بارے میں سرچ کرتی، کچھ سن رہی ہوتی، کچھ پڑھ رہی ہوتی، مجھے فیل ہوتا ہے جیسے کوئی میرے اندر کہہ رہا ہے ٹینا یہ تمہارا دین ہے۔ کبھی کبھی میں گھبرا کر لیپ ٹاپ بند کر دیتی، میرا دل بے چین رہتا۔ میں نے کچھ دنوں تک سب چیزیں بند کر دی اور ان چند دنوں میں مجھے کہیں چین نہیں ملا۔ رحمان، مجھے نہیں پتا میں نے کیا کیا، کہیں میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا نا؟ وہ اپنی بات کے آخر میں بے چینی سے پوچھنے لگی۔ نہیں طوبا، تم نے جو پایا وہ نصیب والوں کو ملتا ہے۔ تم بلیو کر سکتی ہو ہم نے اسلام کے بارے میں جانا ہی کیا ہے، وضو کرنا سیکھا، چند ایک صورتیں سیکھی اور ہمارا دل اسلام میں لگ گیا۔ سوچو اگر تم پورا قرآن پڑھ لو تو کیا ہوگا؟ وہ لسان سے کہہ رہا تھا، صرف چلا گیا۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ لوٹ آئے گا، وہ ہمارے بنا نہیں رہ سکتا، اور وہ تمہارے بنا بھی نہیں رہ سکتا۔ آگے کا جملہ اکشے نے پورا کیا تھا۔ وہ لوٹ آئے گا، رحمان نے پھر سے اسے دلاسا دیا۔ اور آگے، اور اگر وہ نہ آیا تو جیسے سے کچا ہو تو وہ رب ہے نا۔ اس نے شہادت کی انگلی اوپر اٹھائی۔ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تھوڑے بہت لاڑ تو اٹھائے گے نا؟ رحمان نے اس کا منہ ٹھیک کرنے کے اشارے سے کہا۔
दोनों मुस्कुरा दिए। अगर आज एजे यहाँ होती तो कितना खुश होती। दोबारा सुधरी से कहा। माहौल एकदम गमगीन हो गया। और सबसे ज्यादा वही खुश होती। एक शर्म आवाज में कहा, माँ ने गहरा सांस अंदर खींचा। अगर घर वालों को पता चल गया तो इन्हें क्यों बताए, इन्हें कौन बताएगा? शायद से अक्षय ने कंधे उचकाएगा। नहीं, वो ऐसे नहीं करेगा। तो मैंने अपने में सर लिया। वक्त आने तक सब खामोश रहेंगे, बाकी बाद में देखते हैं। रहमान की बात पर दोनों ने सर हिला दिया। पिछले 1 साल से इनकी जिंदगी में सब बहुत अचानक हुआ था। सिर्फ का एग्जाम क्लियर था, वो पुलिस ट्रेनिंग के लिए कैंप चला गया। रहमान तोबा और अक्षय को लेकर उस्मान के पास गया था। उस्मान ने इन्हें दोबारा कलमा पढ़ाया था। दोनों दिन में वक्त निकाल कर मस्जिद आते रहते। तोबा भी उस्मान की बीवी के पास आकर कुरान पढ़ती थी। नमाज तीनों ही छुप छुपा कर पढ़ते थे। इन 3 महीनों में सिर्फ ने इनसे कोई राब्ता नहीं किया था। तीनों रात की तन्हाई में छुप कर कुरान पढ़ते थे। तोबा सिर्फ के लिए बहुत परेशान रहती है। नमाज के बाद इसके लबों पर सिर्फ की हिदायत की दुआ थी। वो कुफर छोड़कर इस्लाम की राह पर आए थे। इनका रब कैसे ना इन्हें नवाजता। इस वक्त तीनों स्टूडियो में थे जब सिर्फ वहां आया। इसे देख तीनों ने ऐसा जाहिर नहीं होने दिया जैसे वैसे देख चुके हैं। गाइस, तीनों ने इसकी पुकार पर कान नहीं धरे, पर अंदर से मन कर रहा था अभी जाकर से गले लगा। गाइस, पुलिस ऑफिसर बन गया। इनके इग्नोर करने पर सिर ने खुद ही अनाउंस कर दिया। तीनों ने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। टीना, आई एम सॉरी। और टीना की तरफ बढ़ा। वो फिर भी कुछ नहीं बोली। से समथिंग गाइस, सिड ने झुंझला कर कहा। क्या तुम अल्लाह को मानते हो? ईमान इस बार से चेहरे के साथ पूछा। मैं एक हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ। कैसे अपना धर्म छोड़कर किसी भी दीन में चला जाऊँ? किसी और नहीं, इस्लाम में। आर यू गाइस मैड? सिड ने ताज्जुब से सर हिलाया। सिड, तुम ने बहुत मोहब्बत से सब करा। इसके यूं पुकारने पर सिड का सारा गुस्सा हवा हो गया। सिड, आई लव यू, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या तुम मेरे लिए इस्लाम को नहीं समझ सकते? तो बल कहने पर सिड के कंधे ढीले पड़ गए। कल ये आसान नहीं है। वो थके से अंदाज में बोला। नहीं, आसान है। प्लीज कुछ नहीं, चलो मेरे साथ मस्जिद। इसके बाद जो तुम कहोगे वही होगा, मेहमान ने हाथ से कहा। स्टूडियो में खामोशी छा गई। तीनों धड़कते दिल के साथ इसका जवाब का इंतजार कर रहे थे। ओके, सिर्फ कुछ थे। इसने शहादत की उंगली उठाए पुख्ता लहजे में कहा। इसके जवाब पर सबके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। और वही हुआ जो उन्होंने सोचा था। अल्लाह ने इसे भी हिदायत दी थी। ईमान का हिस्सा बनाया था। वो सर झुकाए बैठा था। क्या हुआ? तुबा ने पूछा। ये सब इतना जल्दी हुआ, यकीन नहीं आ रहा। इसने सर उठाकर तुबा को देखा। इसकी आंखों में वाकई में यकीन नहीं थी। आज है यकीन। और हमने इत्मीनान से कहा, अगर मोम डैड को पता चल गया तो? वो डर रहा था शायद। अल्लाह हमारे साथ है, साथ सब ठीक हो जाएगा। रहमान ने इसके कंधे पर हाथ रख के तसल्ली दी। पुलिस ऑफिसर होकर इतना डरते हो? जी जी। और हमने सर दाएं बाएं मारा। वो मुस्कुरा भी न सका। चारों मीर मेंशन आए थे। बहुत बड़ी को मेरे बच्चों। रज़ामी ने हर दो खुशी के मिले जुले तस्वीरात लिए कहा। सादे भी तबीयत खराब रहने की वजह से ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। इन महीने सालों में गुजरे। तोबा के पेरेंट्स ने साथ पर शादी के लिए दबाव डाला। दोनों का अभी शादी का कोई इरादा नहीं था। वो रोज के बगैर ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। मगर तोबा के माँ बाप को जल्दी थी। उसकी शादी के बाद इन्हें अपने बेटे के पास न्यूयॉर्क चले जाना था। और इन्हीं दिनों की बात है। मिसेस अल्बर्ट तोबा कमरे की सफाई करने आई। जब इनकी नजर अलमारी में रखे खूबसूरत से छोटे से कुरान पाक पर पड़ी। तोबा शावर लेकर बाहर निकली। जब मिसेस अल्बर्ट को अलमारी के पास खड़े पाया तब सही मायनों में इसकी जान निकल गई थी। टीना, ये क्या है? मम्मी, ये कुरान है। तोबा ने मुश्किल कहा। कुरान? मिसेस अल्बर्ट को झटका लगा था। यहाँ क्या कर रहा है? मम्मी, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। मिसेस अल्बर्ट पर हैरतों का पहाड़ टूटा। इसके बाद जो हुआ वो नाकाबिल बर्दाश्त था। तोबा के पेरेंट्स इससे बेहद खफा थे। वो जल्द से जल्द इसकी शादी करना चाहते। तभी उन्होंने साथ से बात की। जब ये खबर साथ के घर वालों को पता चली तब उन्होंने तोबा को अपनी बहू बनाने से इनकार कर दिया, जिसके चलते साथ को भी एतराफ करना पड़ा। जिसका नतीजा ये निकला कि साथ के घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया। साथ अपना सामान लेकर स्टूडियो में आ गया। तोबा के घर वालों ने इसका हाथ साथ के हाथ में दिया और हमेशा के लिए न्यूयॉर्क चले गए। एक बार फिर गमों का पहाड़ टूटा था। रज़ामी ने तोबा को अपने घर में रखा और वहीं से इसे साथ के नकाह में देकर इसके हमरा रुखसत किया। तब तक साथ अपना छोटा सा घर ले चुका था। तब बहुत मुश्किल था, मगर चारों ने सब्र के साथ काम लिया। तोबा और साथ के इस्लाम कबूल करने की खबर ईमान और अरहम के घर तक भी पहुंच चुकी थी। तब इनकी दोस्ती से वाकिफ थे, जिसके चलते इन्हें भी दोनों पर शक होने लगा। दोनों के घर वालों ने इनकी निगरानी शुरू कर दी। नतीजा, दोनों के कमरों से कुरान दरियाफ्त हुआ। मिस्टर अग्रवाल ने रहमान को घर से निकालने के साथ साथ जायदाद से भी आग कर दिया। मगर रहमान को इसका कोई पछतावा नहीं था। हाँ, अगर कम था तो घर वालों से दूर होने का। मगर इसने भी सब्र से काम लिया और हमको भी अपने घर से जाना पड़ा। इस मुश्किल वक्त में रज़ामी ने इनकी बहुत मदद की। रहमान की लोगों की पढ़ाई का खर्चा उठाने के साथ साथ अरहम के जिम्मे अपना ऑफिस कर दिया। इन ही दिनों साथी की तबीयत बिगड़ी। रज़ामी ने फौरन हॉस्पिटल लेकर गए, मगर रास्ते में ही इन्होंने दम तोड़ दिया। एक और कम पहाड़ टूटा था सब पर।
मेहमान ने सादिया का जनाजा पढ़कर इन्हें इनकी आखिरी आरामगाह में उतारा। जो थोड़ी बहुत शरारतें बची थी, जो थोड़ा बहुत बचपना रहता था, वो इन सब में खत्म हो गया था। हर वक्त लड़ने झगड़ने वाले मियाँ बीवी बनकर संजीदगी से जिंदगी गुजारने लगे। हर वक्त बकबक करने वाले अरहम के मुंह को कफल लग गया और रहमान इतना गुमसुम हो गया था कि किसी से बात नहीं करता। वो सब सोचते थे अगर कभी अरूज वापस आ गई तो सादिया के बारे में इससे क्या कहेंगे, क्या वो कभी इन्हें माफ कर पाएंगे। जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। तभी तुब्बा के यहाँ एक खूबसूरत सी गुड़िया की पैदाइश हुई। अरसे बाद कोई खुशी मिली थी। अरूज की याद पल पल इनके साथ। उन्होंने बच्ची का नाम नहीं रखा, इन्हें यकीन था वो एक दिन लौट आएगी। ईमान की लौ कंप्लीट हो गई। अल्लाह ने इसे तरक्की दी और कुछ ही वक्त में वो दिल्ली का जाना माना लॉयर बन गया। उन्होंने अल्लाह के लिए सब छोड़ा था और अल्लाह ने इनके काम में बरकत डाल दी। साथ के कई प्रमोशन हुए। यूं ही 6 साल गुजर गए और एक दिन इन्हें इसके लौट आने की खबर मिली। जैसे प्यासे को सहरा में पानी मिलने की खुशी होती है, इससे बढ़कर खुशी इन्हें मिली थी। मगर रूज से मिलकर इनकी ये खुशी झाग की तरह बैठ के रूज इनसे नाराज होगी, ये तो वो जानते थे, मगर इस कदर सर्द रवैया इन्हें यकीन नहीं था। इस दिन इससे मिलकर वो रहमान के पास गए थे। उन्हें देखते ही वो दीवानों की तरह इसका पूछने लगा, जी कैसी है, क्या इसने तुम लोगों से बात की, क्या इसने मेरे बारे में पूछा। लेकिन वो दीवाना नहीं था। वो दोस्ती में हारा हुआ शख्स था, एक पछतावे की आग में चलता शख्स था। मगर तुबा के मुंह से इसके रवैये का सुनकर इसका धमकता चेहरा उतर गया। मगर फिर भी दिल में कहीं सुकून था कि वो लौट आई है। बारिश थम चुकी, मगर इसके आंसू फिर भी जारी थे। शायद आज वो अपने रब से अपनी बात मनवा कर ही वहां से उठने वाला था। तो बदवा को सिदरा के पास छोड़कर वापस हॉस्पिटल आ गई थी। अरूज को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। सबको बस इसके होश में आने का इंतजार था। हर लब पर दुआ थी, हर दिल में उम्मीद थी। इसी उम्मीद में सारी रात गुजर गई। किसी ने भी एक पल के लिए आंख बंद नहीं की थी। रहमान का कोई अता पता नहीं था। साद ने कई बार इसे कॉल की थी, मगर कोई जवाब नहीं आया। तीनों जहां अरूज के लिए परेशान थे, वही रहमान के लिए फिक्रमंद भी थे। फजर की अज़ानों की आवाज सुनाई देने लगी। साद और अरहम नमाज के लिए मस्जिद में चले गए। अदम भी मस्जिद में बने प्राइवेट रूम में नमाज के लिए आ गई। ज़ैन भी रज़ामीर को वहीं छोड़ नमाज के लिए निकल आया। ऐसी इन सबसे बेनियाज सोई पड़ी थी। वहां बैठे कुछ के दिलों में डर था तो कुछ के दिलों में यकीन। एक नर्स बाहर आई। मुबारक को पेशेंट को होश आ गया है। नर्स ने मुस्कुरा कर अलानिया कहा, सबको कैसे नई जिंदगी की उम्मीद मिली थी। सबको तो जैसे नई जिंदगी की उम्मीद मिली थी। मुबारक को मीर साहब, आपकी बेटी ने नई जिंदगी पाई है। डॉक्टर अचानक पीछे से नमूदा हुआ। अगर 24 घंटों में होश नहीं आता तो आपकी बेटी कोमा में भी जा सकती थी। डॉक्टर की बात पर सबने तशक्कुर बड़ा सांस खारिज किया। रज़ामीर कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। आईसीयू में रहेगी, थोड़ी रिकवरी के बाद इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इनकी खामोशी पर डॉक्टर खुद ही बताने लगा, अब आप इनसे मिल सकते हैं, मगर सिर्फ एक। डॉक्टर रज़ामीर के कंधे पर हाथ रखे कहता आगे बढ़ के, मैं शुक्राने के नफल अदा करके आता हूँ। रज़ामीर अचानक उठे थे। अदन अपने रब का ढेरों शुक्र अदा कर रही थी। ज़ैन ने गहरा सांस लिया। रात से इसकी जान हलक में अटकी थी। आईसी सस्ताती नीचे उतरी। सिदरा, इसने इधर देख सिदरा को आवाज दी। जी मैडम। सिदरा किचन से निकली। घर में इतनी खामोशी क्यों है। आईसी ने भुआ शिकायत पूछा। सब हॉस्पिटल गए हैं। हॉस्पिटल? जी, कल रात अरूज मैडम का एक्सीडेंट हो गया था। सिदरा ने सुदगी से कहा। क्या? ऐसे के पैरों तले जमीन निकल गई। जी मैडम जी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, आप सो रही थी ना, इसलिए उठाया नहीं। सिदरा ने इसका गुस्सा देखते मासूमियत से कहा, सोई थी, मरी तो नहीं थी। जी मैडम जी, पर आप ही ने कहा था मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। सिदरा ने कल रात कही इसकी बात याद दिलाई। हटो यहाँ से। ऐसी से साइड पर करती देर से बाहर निकली। मैडम जी नहीं के हॉस्पिटल में है। सिदरा ने पीछे से आवाज लगाई। ऐसी ने पोर्च में आकर आसपास नजरें तो रही। घर में एक भी गाड़ी नहीं थी। सारी गाड़ियां हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। ऐसी ने दन को खोल करके रूज की हालत का पूछा। दन से तसल्ली दी कि वो ठीक है। तब जाकर ऐसी ने सुकून का सांस लिया। अंकल आप जाकर मिल लें रूज से। जैन ने कहा, मैं अपनी बच्ची को इस हालत में नहीं देख सकता। वो ढाल से बोले, अंकल वो ठीक है अभी। जैन ने तसल्ली दी, जानता हूँ, पर इसे पट्टियों में जकड़ा देख नहीं सकता। जमीर की बात पर सबने एक दूसरे को देखा। सभी बेताब थे इससे मिलने के लिए, मगर जमीर का पहला हक था। जैन तुम जाओ, मिल लो इससे। जमीर ने इस कंधे पर हाथ रखे गुस्सा सुलझा। जैन को कहना ही था। वो तेजी से आईसीयू की तरफ बढ़ा। तभी नर्स आईसीयू से बाहर निकली। पेशेंट अपने दोस्तों से मिलना चाहती, कोई रहमान, तूबा ऐसे नाम ले रही थी। नर्स ने ऊंची आवाज में कहा। जैन के कदम वहीं थम गए। इसे लगा इसने कुछ गलत सुना है। रूज ने यकीनन इससे ही मिलने का कहा होगा। सिस्टर, किससे मिलना है? इसने धड़कते दिल के साथ पूछा। अपने दोस्तों से मिलना चाहती है, नर्स दोबारा आहिस्ता आवाज में कहती आगे बढ़ गई। इसे लगा था रूज होश में आते ही इससे मिलेगी, मगर इसके दोस्तों का सुन सही मायनों में इसे अच्छा नहीं लगा।
जितनी तेजी से वो आगे बढ़ा था इतनी सुस्त रवि से वापस आकर अपनी जगह पर बैठा। तीनों फौरन अंदर गए थे। इसने कभी इजहार नहीं किया वो मुझसे मोहब्बत करती है। बेंच पर बैठे इसके दिमाग में तरह तरह की सोचें आ रही थी। जितनी जल्दी थी इससे मिलने की इतना ही दिल उदास हो गया था। रोज पट्टियों में जकड़ी बेड पर आंखें मूंदे लेटी थी। ऊपर ऑक्सीजन मास्क लगा था। तीनों अंदर आए। आहट पर इसने आंखें खोली। इन्हें देख हल्की सी मुस्कान इसके लबों पर दहर आई। तूबा रोने लगी। रूज ने हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया। तूबा दौड़ कर इसके नजदीक गई। पास पड़ी चेयर पर बैठकर इसने रूज का हाथ पकड़ लिया। चारों की आंखें अश्कबार थी। रहमान, इसने धीमी आवाज में पूछा। तीनों को मुश्किल ही सुन पाए। रहमान कहाँ है? इसकी आवाज बहुत मुश्किल से निकल रही थी। तूबा ने इन दोनों को देखा। रूज ने इसकी नजरों के ताकों में नजरें दौड़ाई। पता नहीं। और हमने नम आवाज में कहा। रूज ने समझी से देखा। मैं देखता हूँ। साथ फौरन कहता बाहर निकला। जहन सर झुकाए बैठा था। साथ को समझ नहीं आई वो क्या करे जब इसे दूर से रहमान आता दिखाई दिया। और गजे कपड़े कंधों को ढीला छोड़े सर को झुकाए वो छोटे छोटे कदम ले आगे बढ़ रहा था। पैरों में पहने जोगर मिट्टी से अटे हुए थे। हर कदम के साथ जोगर फर्श पर अपने निशान छोड़ रहे थे। वहां काम करता एक वर्कर हैरत और सदमे से इसके छोड़े गए निशान देख रहा। वो अभी भी फर्श शीशे की तरह चमका कर गया था। इसके सदमे में डूबी नजरों ने दूर तक रहमान के बूटों का ताकुब किया था। आते जाते लोग इसे अजीब सी नजरों से देख कर गुजर रहे थे। रहमान कहाँ थे? ये क्या हालत बना रखी है? इसके करीब आते ही सामने से गोशी बड़े अंदाज में कहा। जहन जो सर झुकाए बैठा था इसे रहमान के कंधे गंदे जोकर दिखाई दे रहे थे। एजे तुमसे मिलना चाहती है। साथ के गाने पर जहन ने सर उठाकर इसे देखा। एक की आंखों में खुशी और बेयकीनी थी तो दूसरे की आंखों में सिर्फ बेयकीनी। रोज ने इसे नहीं पुकारा था। क्या वो इससे मिलना नहीं चाहती थी या इसे नहीं पता था कि वो आया है? इसने जैसे सर उठाया वैसे ही झुका लिया। चलो। साथ ने इसे बाजू से पकड़ा। रहमान टस से मस ना हुआ। साथ पलटा। रहमान, इसने दाएं बाएं सर हिलाया जैसे इसमें हिम्मत ना हो रोज से सामना करने की। रहमान, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। साथ की बात पर किसी ने कलब से आंखें मीची थी। चलो। साथ ने इसे बाजू से पकड़ खींचा और वो किसी बेजान पुतले की तरह इसके पीछे खींचता अंदर दाखिल हुआ। सालों की रंजिशें हैं मिटने दो। रज़म में शायद इसकी हालत समझ रहे थे इसलिए जहन के कंधे पर हाथ रखे। उन्होंने तसल्ली बड़े अंदाज में कहा। जहन ने गहरा सांस लेकर लिया मगर कहा कुछ नहीं। अंदर आते ही रूज की नजरें रहमान की नजरों से मिली और वो घबरा कर नजरें चुरा गया। रहमान। रूज की पुकार पर भी वो नजरें झुकाए खड़ा था। रहमान। इस पर आवाज में नमी घुली थी। रहमान का वजूद लड़खड़ाने लगा था। शायद वो रो रहा था। वे लैला के मजनू। ये तीसरी पुकार थी जिसमें नमी के साथ शरारत भी घुली थी। रहमान का जब टूट गया फूट फूट कर रोने लगा। इसका सारा वजूद लड़स रहा था। साथ ने आगे बढ़कर इसे गले लगाया था। इसे चुप करवाओ प्लीज। सरूज ने तूबा का हाथ सख्ती से पकड़े कलब से कहा। पर वो क्या चुप करवाती? वो तो खुद रो रही थी। वहां मौजूद पांचों नफूस रो रहे थे। आज सबके जब्त का बदला लूटा था। अपना मन हल्का करने के बाद वो साथ से दूर होता चुके सर के साथ मुद्दा कदम उठाता इसकी तरफ बढ़ा। कोई गुजरे लम्हों की बात नहीं होगी। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। जो मैंने खोया अल्लाह ने इसके बदले बहुत बेहतरीन से नवाजा है। बात करते करते इसकी सांस फूल गई थी। अगर मैं तुमसे शिकायत करूंगी तो ये इस रब की नाशुक्री होगी और मैं ये नहीं चाहती। वो बुरी तरह रोने लगी। आई एम सॉरी एजे। बहुत हिम्मत करके रहमान ने इसकी नजरों से नजरें मिलाई थी। मैं तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं था। मैंने बहुत गलत किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। इतने सालों की इज्जत खत्म कर दो। इस पछतावे से निकाल दो। मैं रोज मरता हूँ। मुझे अपनी माफी भीख में दे दो। मैं वो भी ले लूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। वो इसके सामने हाथ जोड़े खड़ा था। रूज ने जोर जोर से सर दाएं बाएं मारा था। वो हाथ नहीं हिला पा रही थी। नहीं जो हुआ अच्छे के लिए हुआ था। वो हिचकियों के दरमियान में मुश्किल बोली। आई एम सॉरी। रहमान ने इसके बेजान पैरों पर हाथ रखा था और उसके जिस्म में जैसे करंट दौड़ गया। इसने करब से आंखें मीची थी। वो इसे रोकना चाहती थी पर वो हिल नहीं पा रही थी। एक बार कह तो मुझे माफ किया। मैंने तुम्हें माफ किया। मैंने सबको माफ किया। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। प्लीज अपने हाथ हटाओ। वो तेजी से बोली थी। रहमान ने अपने हाथ हटा लिए। अगर मैं ठीक होती तो दो लगाती। रूज ने सख्त लहजे में कहा। जब हो जाओ तब लगा देना। तूबा ने इसके हाथ को दोनों हाथों में थामे शरारत से कहा। साथ आगे बढ़ा। अगर तुम भी यही सब करना चाहते हो तो प्लीज। रूज ने मुंह बनाया। साथ जो इसी इरादे से आगे बढ़ा था वहीं रुककर मुस्कुरा दिया। हम सब तुमसे शर्मिंदा हैं एजे। हमने जो किया माफी के लायक नहीं पर प्लीज हमें माफ कर दो। तूबा ने बड़ाई आवाज में कहा। जो तुमने किया इसके बदले तो अल्लाह ने भी तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए होंगे तो फिर मैं कौन होती हूँ तुमसे नाराज रहने वाली? रूज हल्का से मुस्कुराई। चारों का मन हल्का हो गया। जैन को बुला दो। वो आया है ना? हाँ वो आया है। बाहर ही है। इस सब में पहली बार अरहम बोला। इसे बुला दो। इसकी आवाज में बेचैनी थी। मैं बुलाता हूँ। अरहम बाहर निकल गया। एजे तुमसे मिलना चाहती है। वो जो काफी देर से एक ही पोजीशन में बैठा था साथ के कहने पर बर्फ उतारे से उठता अंदर दाखिल हुआ।
اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر پٹیوں میں جکڑی عروج پر پڑی۔ اس کے دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ صبح اپنی جگہ چھوڑ چکی تھی، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی جگہ جا بیٹھا، چاروں خاموشی سے باہر نکل گئے۔ عروج کے بے جان ہاتھوں کو وہ اپنے ہاتھوں میں تھامے پیشانی سے ٹکائے بیٹھا تھا۔ عروج ہنوز اسے ہی دیکھ رہی تھی، اسے اپنے ہاتھوں پر نمی سی محسوس ہوئی۔ کچھ کہو گے نہیں؟ اس نے جھکا سر ہی دائیں بائیں مارا۔ میری طرف دیکھو۔ اس کی آواز سرگوشی میں نکل رہی تھی۔ زین نے پوچھ کے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا، وہ رو رہا تھا۔ تم پاگل ہو؟ اس نے خاموشی سے سر ہلا۔ say something stupid۔ محبت سے بولے، تم بہت بری ہو۔ وہ بولا بھی تو کیا؟ اچھا وہ کیسے؟ وہ مسکرائی۔ تمہیں کسی کی پرواہ نہیں، تم سب کو پریشان کرتی ہو، سب کو اپنے لیے ترساتی ہو۔ تم واقعی بہت بری ہو۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے شکوے کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ تم بہت بری ہو۔ زین دوبارہ بڑبڑایا۔ تمہارے کہنے سے کیا ہوگا؟ میں شوہر کو تمہیں بہت پیاری لگتی ہوں۔ عروج نے شرارت سے کہا۔ تمہارا شوہر اندھا ہے نا، اس لیے۔ انہوں روکھے پن سے بولا، نظریں ابھی بھی جھکی تھی۔ میری طرف دیکھو۔ وہ اسے دیکھنے سے کترا رہا تھا۔ ٹھیک ہوں میں۔ وہ چہرہ جھکائے ہی بولا تھا۔ اگر میں مر جاتی تو؟ وہ کسی خیال کے تحت بولی۔ زین نے غرب سے آنکھیں نیچی تھی۔ تم نے بھی ایک بار کچھ ایسے ہی کہا تھا۔ عروج اب اسے چھیڑ رہی تھی۔ تب کی بات اور تھی۔ اچھا تب کیا تھا؟ چھوڑو اسے۔ وہ دن پھر تمہیں ان سے محبت کب ہوئی تھی؟ وہ اس کی ہر بات پر نیا سوال کھڑا کرتی۔ تمہیں اس سے کیا؟ وہ مصنوعی کپڑی سے بولا۔ بتاؤ نا، اس نے لاڈ سے پوچھا۔ جب تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ اس بار اس نے عروج کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کیسے؟ وہ حیران ہوئی۔ زین ہلکا سا مسکرایا۔ عروج کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ آج تک کسی نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، امی، جیڈ، آیت، میرے فرینڈ، کسی نے بھی نہیں، مگر تم نے اٹھایا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا، وہ بھی میرے دوستوں کے سامنے۔ وہ طنز نہیں کر رہا تھا، مگر پھر بھی عروج شرمندہ ہوئی۔ تب میں اندر تک ہل گیا۔ تمہاری آنکھوں میں غصہ تھا مگر نفرت نہیں تھی۔ عروج، میں نے جب تمہاری آنکھوں میں دیکھا، مجھے وہاں بہت کچھ دکھائی دیا، غم، غصہ، حیرت، درد، نہ جانے کیا کیا۔ تم پہلی تھی جس کے تھپڑ نے میرے دل کی تاروں کو چھیڑا۔ تب احساس ہوا تھا، مگر میں نے غور نہیں کیا۔ وہ رکا۔ تم نے مجھے اندھیری رات میں وہاں کیوں پھینکا تھا؟ وہ شکوہ نہیں تھا، مگر وہ شرمندہ ہوا۔ ایم سوری۔ اس نے جواب دینے کے بجائے معافی مانگی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ زین نے اس کے ہاتھ پر ایک بوسہ دیا۔ سفید پٹیوں میں جکڑا اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آئی لو یو عروج۔ اتنی گمبھیرتا سے اس نے اظہار کیا، عروج کا سانس تک رک گیا، اور اگلی پل ایسی تیزی سے دروازہ کھولتی اندر آئی۔ وہ تم ٹھیک ہو؟ ایسی قریب آتی فکر مندی سے بولی، آگے کباب میں ہڈی۔ زین نے منہ بنایا۔ ایسے اسے اگنور کرتی عروج کے سرانے بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہوں میں، عروج نے مسکرا کر کہا۔ آئی ایم سوری، مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا۔ ایسی شرمندہ ہوئی تھی۔ تمہیں سونے سے فرصت ملے تو کچھ بتاؤ۔ زین منہ میں بڑبڑایا تھا، لیکن آواز دونوں تک پہنچ چکی تھی۔ ایسے نے بسم کر دینے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ کیسی ہو؟ ایسے دوبارہ اسے اگنور کرتی عروج کی طرف مڑی۔ دکھائی نہیں دیتا یہ ابھی بھی نیند میں ہو؟ زین کی زبان میں کچھ تم۔ ایسے نے کچھ کہنے کے لیے ہاتھ منہ کھولا ہی تھا جب نرس دروازہ کھول کر اندر آئی۔ پیشنٹ سے صرف ایک کو ملنا الاؤ تھا، اور آپ یہاں دو ہیں۔ ابھی پیشنٹ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ پلیز باہر جائیں، انہیں انجیکشن دینا ہے۔ نرس نے نون اسٹاپ کہا۔ زین نے دل پر پتھر رکھ کر عروج کا ہاتھ واپس اپنی جگہ رکھا اور باہر نکل گیا۔ نرس کی صورت سے عروج کو ہنسی آ رہی تھی۔ اسے تھوڑی نہ پتا تھا ابھی 4 لوگ اور بھی ہو کر گئے ہیں۔ نرس اسے انجیکشن دے کو مزید ایک دو پروسیس کرتی باہر چلی گئی۔ نرس کے جانے کے بعد عروج نے گہرا سانس لیا۔ سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ گزرے لمحوں کی یادیں کسی فلم کی طرح اس کے دماغ میں چل رہی تھی۔ سب کچھ پورا ہو گیا تھا، نہیں شاید ابھی کچھ ادھورا تھا۔ ہاں کچھ ادھورا تھا ابھی، جسے اسے یہاں سے نکلنے کے بعد پورا کرنا تھا۔ نرس کے دیے انجیکشن کے ذریعے سے وہ سوچوں کے درمیانی نیند کی وادی میں اتر گئی۔ زمین نے اس کا صدقہ اتارا تھا۔ بدن بھی اس سے ملنے کے بعد کچھ نہ کچھ پڑھ کر اس پر پھونک دیتی۔ عروج پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی۔ گڈ مارننگ، فریش فریش سا زین اندر آیا۔ گڈ مارننگ۔ عروج ابھی سو کر اٹھی تھی۔ کیسی فیلنگ ہے اب؟ زین نے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ اچھی ہے، عروج نے مسکرا کر کہا۔ تو بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ زین اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ سیاہ جوس، ناٹ اونلی جوس، کچھ کھانا ہوگا ساتھ۔ عروج نے برا سا منہ بنایا۔ مجھے نہیں کھانا۔ کیوں؟ من نہیں ہے؟ ابھی تو کہہ رہی تھی اچھی فیلنگ ہے۔ زین نے گھور کر کہا۔ ہاں مگر بھوک نہیں ہے، اس نے منہ بسوڑے کہا۔ پر کھانا تو پڑے گا، میں ابھی کچھ لے کر آتا ہوں۔ زین پیار سے اسے پچکارتے باہر نکل گیا۔ کنٹین سے فریش جوس لینے کے ساتھ کچھ کپ کیکس لے کر زین واپس روم میں آیا جب رحمان اور ارحم کو دیکھ ٹھٹکا، جو عروج کو زبردستی کچھ کھلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ زین نے ہاتھ میں پکڑا پیکٹ دیکھا جس میں وہ ابھی بھی عروج کے لیے جوس اور کیکس لے کر آیا تھا۔ ہیلو۔ ارحم نے اسے دیکھتے مسکرا کر کہا۔ ہیلو۔ زین نے مسکرانے کا تکلف بھی نہیں کیا۔ کیا کھا رہی ہو؟ زین عروج کی طرف بڑھا۔ سوپ ہے، جواب رحمان کی طرف سے آیا۔
तुम क्या लाए हो? अरूज ने सूट साइड पर किया। कुछ नहीं, जूस लाया था। जैन ने पैकेट इसकी तरफ बढ़ाया। चेहरे पर गहरी संजीदगी थी जिसे अरूज ने नोटिस किया। रहमान चेयर छोड़कर साइड पर हो गया। जैन ने चेयर घसीट कर आगे की ओर खामोशी से बैठकर जूस निकाल कर अरूज को थमाया। अरूज ने गहरी नजरों से इसे देखते जूस थामा था। केक आओ, लाए हो तो जरूर, अरूज ने मुस्कुरा कर कहा। जैन ने केक निकाल कर आगे रख दिया। पापा नहीं आए? इसने केक की बाइट लेते पूछा। नहीं, थोड़ी देर तक आएंगे। जवाब संजीदगी से आया। थोड़ी देर पहले वाला जैन अब मुरझाया सा लग रहा था। एजे, हम बाहर हैं, मेहमान अरूज से कहता। अरम को इशारा किए बाहर निकल गया। अरम भी इशारा समझते इसके पीछे ही बाहर निकला था। अरूज ने पहले इन्हें फिर चेहरे पर संजीदगी से जाए बैठे जैन को देखा। क्या तुम्हें मेरे फ्रेंड्स अच्छे नहीं लगते? इसने केक वापस रख दिया। तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार वही हैं। आवाज में खजाओं सी खुशकी थी। रोज हक्का बक्का इसे देखने लगी। ऐसा नहीं है तो कैसा है? जैनब इसकी आंखों में देख रहा था। जो होता है अच्छे के लिए होता है, प्लीज इन्हें ब्लेम मत करो। इसके मुंह से मरी मरी आवाज निकली। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? पर मुझे लगता है। जैन ने केक उठाकर इसके मुंह के आगे किया। नहीं चाहिए। रोज ने इसका हाथ उठाया। जैन को बुरा लगा था। क्या तुम हम दोनों के बीच अपने दोस्तों को ला रही हो? वो हैरान था। मैं नहीं, तुम ला रहे हो। इसके गले में आंसू का फंदा अटक गया। मैं नहीं ला रहा, जो सच है वही बता रहा हूँ। सैम ने दोबारा केक इसके मुंह के आगे किया। रूज ने मुंह फेर लिया। तो रूज, ये क्या तरीका है? वो चिढ़कर बोला। तुम क्या कह रहे हो? तुम जानते हो मुझे नहीं अच्छा लगा तुमने इन्हें ब्लेम किया। आवाज भर आ गई, आंखों में नमी उतर आई। जो सच है वही कह रहा हूँ। वो अपनी बात पर अटका था। उन्होंने जो किया वो गलत फहमी में था, मगर तुमने जो किया था इसका क्या? वो शिकायत पर उतरे। तुम्हें मेरे साथ मेरे दोस्तों को भी कबूल करना होगा। फैसला अटल था। और अगर ना करूं तो? सर्द महरी से कहा गया। रूज ने बेयकीनी से उसे देखा। बोलो। दोनों की नजरें एक दूसरे में घिरी हुई थी। रूज की आंखों से आंसू टप टप बहने लगे। अरे, जैन एकदम बुखला गया। मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस होगी। जैन ने इसका हाथ पकड़ा। चेहरे पर शरारत थी। रूज ने चंद लम्हे बेयकीनी से उसे देखा, फिर सर घुटनों में दिए रोने लगी। रूज, यार मजाक कर रहा था। जैन ने इसके हाथ पर दबाव डाला। वो हिचकियों से रोने लगी। इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो मेरी तरफ। जैन ने दोनों हाथों से इसका चेहरा अपनी तरफ किया। मैं मजाक कर रहा था। स्टूपिड, तुम सीरियस होगी? वो गंभीर आवाज में बोला। मैं जानता हूँ तुम अपने दोस्तों से बहुत प्यार करती हो। हाँ, मुझे इन पर गुस्सा था। मुझे लगा था तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार वही है। जब तुम बेहोश थी मुझे डर लगा था तुम्हें खोने से। आई एम सॉरी, मैं बस तुम्हें तंग कर रहा था। जैन ने नरमी से कहा। और चंद लम्हे रुकने के बाद दोबारा रोने का शुगल मनाने लगी। आ जाओ यार, वरना ये रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर लेगी। जैन ने ऊंची आवाज में हाँक लगाई। रोज रोना बंद करके इसे देखने लगी। तभी दरवाजा खुला और सब अंदर आए। सबके चेहरे पर शरारत बड़ी मुस्कान थी। रोज हक्का बक्का इसे देखने लगी। कैसा लगा हमारा मजाक? आइसी ने चह कर पूछा। मजाक? हाँ ना, हम बस जैन के साथ मिलकर तुम्हें तंग कर रहे थे। तुब्बा ने नरमी से इसके आंसू साफ करते बताया। ये कैसा मजाक है? रोज ने गुस्से से इसका हाथ झुका। सॉरी, तुब्बा ने कान पकड़े। रोज ने तेज घूरी से इसे नवाजा। सब खामोशी से खड़े मुस्कुरा रहे थे। तभी दुआ दौड़ती हुई इसके पास आई और बेड पर चढ़ने की नाकाम कोशिश करने लगी। जैन ने इसे उठाकर उसके पास बिठाया। आप भी थी इस प्लान में शामिल? दुआ ने मासूमियत से सर हिला दिया और जोर से हंसी। सभी इसकी सदा पर खुलकर मुस्कुराए थे। हम तो बस ये चेक कर रहे थे कि वाकई तुमने हमें माफ कर दिया कि नहीं। साथ गर्दन पर हाथ फेरता खफीफ सा बोला। एक बार फिर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आया? ना चाहते हुए भी जुबान से शिकवा निकला था। जिन चेहरों पर मुस्कुराहट थी अब वो मुतगैर हो गई। ऐसा कुछ नहीं है बस। पर हमने कुछ कहना चाहा जब अरूज ने इसे टोक दिया। मेरा वो मतलब नहीं था। वो खुद को कोसने लगी। आई एम सॉरी, मेहमान आ गए, बस कर दो, हो गया। सॉरी से ही पेट भरोगे क्या? अनुज ने तंग आकर कहा। जैन उठकर रहमान के पास आया। इस दिन के लिए सॉरी। जैन ने इसके कंधे पर हाथ रखेगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझता हूँ। रहमान मुस्कुराया। कौन सा दिन? अनुज ने आईब्रो उठाए पूछा। कुछ नहीं। जैन मुस्कुरा कर कहता वापिस अपनी जगह आकर बैठ गया। दुआ अरूज की गोद में बैठी सबके चेहरे देख रही थी, जैसे कह रही हो मैं भी यहाँ हूँ, अभी कुछ खिला तो भूख लगी है। रोज ने मस्कीन सी शक्ल बनाई। अभी तो कह रही थी भूख नहीं है। जैन ने शरारत से कहा। अब लग गई। रोज ने गुस्सा दिखाया। ओके डियर पूंडा दी, गुस्सा क्यों कर रही हो? बोलो क्या कहोगी? अल्लाह, तुम अपनी बीवी को पनौती कह रहे हो? आईसी ने मुंह पर हाथ रखे हैरत से कहा। जहां जैन ने खा जाने वाली नजरों से देखा वहीं रोज का कहका बुलंद हुआ। अपने कान साफ करो तो कुछ सही से सुनाई दे। मैंने पनौती नहीं पूंडाती कहा है। जैन ने तीखे अंदाज में कहा। पनौती तो सुना था, ये पूंडाती क्या होता है? आईसी ने थोड़ी तले हाथ टिकाए सोच अंदाज में कहा। रोज की हंसी को स्पीड लगी। वहीं जैन दांत कचकचा के रह गया खामोश खड़े। चारों ने दिल ही दिल में रोज की नजर उतारी थी। खुद जैन आईसी को छोड़कर इसे देखने लगा, जिसे वो पहली बार ऐसे हंसते देख रहा था। इतना मत हंसे, नजर लग जाएगी।
दुआ ने मासूमियत से कहा, रूज। हसना जो मोहब्बत से इसे देखने लगी, आपको किसने कहा ज्यादा हंसने से नजर लग जाती है? रूज ने इसके फूले गाल खींचते पूछा। दर्द होता है? दुआ ने मुंह जोर के कहते अपना गाल मिला जो लाल हो चुका था। ओह सॉरी। रूज ने फौरन कान पकड़े, जिस पर दुआ हंस दी। सब दिलचस्प नजरों से दोनों को देख रहे थे। जूस पियोगी? रूज ने जूस का डब्बा इसे थमाया, जिसे दुआ ने खूबसूरत मुस्कान के साथ थाम लिया। जैन ने दूसरा डब्बा खोल कर इसे दिया। तीनों लड़के जाकर सोफे पर बैठ गए। दुआ ने जूस पीते जरा सा रूज पर गिरा दिया। ओह सॉरी। दुआ ने झटका। कोई बात नहीं, रूज मुस्कुराई। वैसे तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, मेरे बिना ही शादी कर ली। हम सभी रंजिशें खत्म होने के बाद गिले शिकवे शुरू हो गए थे, हालात ही ऐसे पैदा हो गए थे। साथ के लहजे में उदासी थी। रोज बात समझती खामोश होगी। तुम भी यूं बिना बताए चली गई, वापस कब आओगी? ये भी नहीं बताया। पता है कितना इंतजार किया हम सब ने। तुम भी शिकवे पर उतर आए। बताया तो था। वो कमाले बेनियाजी से कहती चारों पर बम गिरा गई। क्या? कब? आवाज रहमान की तरफ से निकली। हिंट दी तो थी। रोज ने मजे से जूस का खून पड़ा। कैसी हिंट? चारों की आवाज मिल गई। जैन भी हैरान हुआ। आयसी ने समझी से इन्हें देख रही थी, जिसे किसी बात का इल्म नहीं था। 6 लेटर, 6 साल। अरूज ने कंधे उचकाए। चारों को झुका रहे थे। चारों मुंह खोले से देख रहे थे। तो तुमने? ओ मेरे अल्लाह। रहमान ने सर पकड़ लिया। बाकी दिनों की हालत भी ऐसी थी। तो भैया 6 लेटर इसीलिए लिखे थे, जिसका मतलब था वो 6 साल बाद लौट आएगी। अल्लाह। तूबा ने बड़े सदमे के मुंह पर हाथ रखा। इतना हैरान क्यों हो रही हो? वो इनकी हालत से लुत्फ ले रही थी। तुम्हें पता है हम कितना तड़पे तुम्हारे लिए। इनकी गलती थी तो थप्पड़ लगाती, मगर यूं जाती तो ना। ये रहम था जिसने इतने सालों में पहला शिकवा किया। मैं नाराज हुआ था इससे। तुम लोगों की वजह से मैं भी बीच में फ्री में घसीटा गया। वो रोहानसा होकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। गाइस सब ठीक हो चुका है। अरूज ने सब पर जोर दिया। अरहम खुद को ढीला छोड़कर वापस बैठ गया। ऐसी बहुत गौर से अरहम को देख रही थी, जो सर झुकाए बैठा अपनी हालत कंट्रोल कर रहा था। इसकी कोई गलती नहीं थी, मगर फिर भी सजा काटी। बाज दफा जिसकी कोई गलती नहीं होती, वो भी रिश्तों की लपेट में आकर बिना किसी गलती की सजा काटता है। अरहम भी इन ही में से एक था। अरूज को डिस्चार्ज मिल चुका था। जैन मीर मेंशन में ही रुका हुआ था। हैदराबाद से जैन की फैमिली अरूज की आदत के लिए आई थी। वतन भी इसके पास से रुकी थी। बाकी चारों भी ज्यादा वक्त इसके साथ ही गुजारते थे। जिनकी जैसे अपनी रो में लौट आई थी। अगर कुछ नहीं था तो सादिया भी, जिसे सब बहुत मिस करते। अरूज हल्का हल्का चलने लगी थी। इस मुश्किल वक्त में सबने इसका भरपूर साथ दिया। बसी साहब अरूज के कहने पर आयत को वहीं छोड़ अपनी अहलिया के साथ वापिस हैदराबाद चले गए। इस वक्त सब लिविंग एरिया में बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। सामने पड़ा टेबल खाने पीने की चीजों से भरा पड़ा था। मीर मेंशन में पहले वाली रौनक लौट आई थी। समय जितना रब का शुक्र अदा करते कम था। तुम दोनों ने अभी तक शादी नहीं की? रोज ने कॉफी का कप उठाते कहा। दोनों ने हैरत से इसके हाथ में पकड़ा कॉफी का कप देखा। क्या हुआ? तुम कहती थी मेरे लिए लड़की तुम ढूंढोगी, इसलिए मैं इंतजार कर रहा था। कब तुम और मेरी शादी हो? और हमने मस्कीन से शक्ल बनाई। अरूज हल्का सा मुस्कुराई। और तुमने शादी क्यों नहीं की? अरूज ने संजीदगी से खामोश बैठे रहमान से पूछा। रहमान के चेहरे पर साया सा लहरा गया, जिसे वहां बैठे सभी ही लोगों ने नोट किया था, जिसमें एक आयत भी थी। बस यूं ही। काफी देर की खामोशी के बाद इसकी धीमी सी आवाज आई थी। क्या इसकी वजह वही है? अरूज ने गहरी नजरों से देखा। रहमान को लगा फिजा में ऑक्सीजन खत्म हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी मुश्किल से अल्फाज अदा हुए थे। यार यहाँ चल क्या रहा है तुम्हारी? एक बात की मुश्किल से समझ आती, दूसरी सर से गुजर जाती है। ऐसी ने मुंह बनाएगा। किसी ने इसकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। अगर मैं कहूँ तो क्या तुम शादी करोगे? कितने मान से पूछा गया था। जैन पास बैठा खामोशी से इनकी बातें सुन रहा था। रोज की बात समझते रहमान जबरदस्ती मुस्कुराया। बस आज से ये जिम्मेदारी मेरी और आईसी की है। क्यों आईसी? रोज ने सुकून का सांस लेते आईसी की तारीफ चाहिए। आईसी जो हंसते मुस्कुराते रंग को देख रही थी, एकदम सीधी होती बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। रोज के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ था, जिस पर वो थोड़ा इसरार सा मुस्कुराई थी। हाँ दोनों अकेले क्यों? मैं भी आपके साथ हूँ। आयत ने झटका। अरे तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? रोज ने प्यार से कहा। तुम साउथ के लोग बहुत स्वीट होते हो। अरूज ने इसके गाल खींचे। जहाँ जैन ने मोहब्बत आज नजरों से देखा था, वहीं आयसी का दिमाग घूम गया। तुम जिया को भूल गई जो ऐसे कह रही हो? आयसी ने सदमे से कहा। जिया का जिक्र अरूज का अलग तक करवा हो गया। ये जिया कौन है? आयत ने मासूमियत से पूछा। आयसी ने पिछले 5 सालों की स्टोरी A to Z सुना दी। सब हैरत की मूरत बने बैठे थे। और तुमने जिया का बदला इन बेचारे स्टूडेंट से ले लिया? अरूज ने लुकमा दिया। तो अच्छा ही किया। अब वो इसी जगह बैठे किसी और की रैगिंग कर रहे होंगे।
ऐसी ने खाली जनानियों वाले अंदाज में हाथ लड़ा लड़ा कर कहा, एजे तुमने ये सब कैसे बर्दाश्त किया? तुमने शर्मिंदगी से पूछा। रोज हल्का सा मुस्कुराई, एक ही सी मुस्कान मगर कहा कुछ नहीं। उसकी खामोशी पर तीनों जी जान से शर्मिंदा हुए थे। एक बात बताओ, तुम दोनों तो कहते थे पुलिस ज्वाइन नहीं करूंगा, लॉयर नहीं बनूंगा, तो फिर क्या हुआ? रोज ने बात का रुख मोड़ते पूछा, जिसके जवाब में साद ने ए टू सी सब बता दिया। जिसे सुन रोज ऐसी आयत जहन सब हैरानी से इन्हें देखने लगी। पर अभी पता चला इतना बुरा भी नहीं ये काम। रहमान मुस्कुराया। रोज मुस्कुरा भी ना सकी। रिश्वत लेते हो? ऐसी ने साद के कान के करीब से गोशी की। क्या वो पुचका रह गया? रिश्वत लेते हो? आराम की कमाई। इस बार आवाज ऊंची थी। साद ने अपने सर हिला दिया। वहीं सबके कह के बुलंद हुए। और हमने की नखियों से देखा। और तुम? ऐसी करके रहमान की तरफ हुआ। रहमान ने तेजी से नफी में सर हिला दिया। ऐसे सर क्या हिला रहे हो? अभी मैंने कुछ पूछा ही नहीं। ऐसी मासूमियत से बोली। क्या पूछना है? रहमान ने इस तीखी मिर्ची को देखा। क्या कभी किसी कसूरवार को बेकसूर और किसी बेकसूर को कसूरवार ठहरा कर जेल भेजा है? ऐसी ने मशकूक अंदाज में पूछा। अस्तगफिरुल्लाह, बिल्कुल नहीं। रहमान ने कानों को हाथ लगाया था। ठीक है, ऐसे इत्मीनान से कहती सैंडविच खाने लगी। दोनों शौक से क्या फितने से देख रहे थे। तुम क्या करते हो वैसे? सवाल अरहम से था। रजा अंकल की कंपनी में काम करता हूँ। कमाले बेनियाज से जवाब आया था। कभी घपला किया है पैसों का? ऐसी ने मशकूक नजरें इस पर गारे पूछा। अरहम आंखें फाड़े से देख रहा था। देखा रू, ये खामोश है, इसका मतलब है इसने जरूर घपला किया है। ऐसी ने अरूज के कान में सरगोशी की। क्या कहा इसने? अरहम झट बोला। कुछ नहीं। ऐसी सीधी होती हुई दोबारा सैंडविच खाने लगी। तीखी मिर्च। अरहम बड़बड़ाया। छीला हुआ आलू। ऐसी ने नाक चला कर कहा, ये जे कहाँ से उठा कर लाई हो इसे? और हमने गुस्से से कहा, एक पल लगा था। ऐसी का चेहरा उतरने में इसने हाथ में पकड़ा सैंडविच वापस प्लेट में रख दिया। लूज ने कड़ी नजरों से हमको घूरा था, जो इसके घूरने पर शर्मिंदा हो गया। सभी चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए। ऐसी खामोशी से उठकर वहां से जाने लगी जब अरूज ने इसका हाथ पकड़ कर वापस बिठाया। तुम जानते हो, ये गुजरे 5 साल हमने एक दूसरे के सफाई की तरह रहकर गुजारे हैं। ऐसी ने मुझे बहुत बार जिया से बचाया। हम दोस्त नहीं, बहने हैं, और ये मेरी जिंदगी की बहुत कीमती चीज है। अनुज ने आकर इशारे से कहते चीज पर जोर दिया, जिस पर ऐसी मुस्कुरा दी। ऐसी इसी पल ऐसी की नजरें अरहम से टकराई। क्या कुछ नहीं था इन आंखों में जो अरहम को नजरें चुराने पर मजबूर कर दिया। गाइस, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अनुज ने याद आने पर एलानिया कहा, मुझे स्पेशली तुम्हारी मदद चाहिए सर। अनुज ने हाथ में पकड़ा कप टेबल पर रखा। सब सवाली नजरों से देख रहे थे। आंटी अदन के बेटे को ढूंढना है, जो कैसा दिखता है पता नहीं, हाँ कहाँ रहता है ये भी नहीं पता। अनुज ने तफसील बताई। अनुज ने अदन की सारी स्टोरी ने सुना थी। सबको बहुत अफसोस हुआ। एजे बिना किसी क्लू के ढूंढना तो मुश्किल होगा। साद ने सोचते कहा। अनुज का चेहरा उतर गया। कैसे पुलिस ऑफिसर हो, एक काम नहीं कर सकते? अनुज ने अफसोस से कहा। तुम फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। साद ने इसे उम्मीद लाई, जिस पर अनुज ने सुकून का सांस लिया था। अनुज ने ऐसी कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। ऐसी की इजाजत मिलने पर मुस्कुराती हुई अंदर आई। तुम ऐसी जो मजे से बेड पर लेटी चॉकलेट के साथ इंसाफ कर रही थी, एकदम चौंकी। क्यों नहीं आ सकती? रूज ने दीवार के सहारे चलते कहा। क्यों नहीं, तुम्हारा भी घर है। ऐसी शरारत से कहती। रूज को सारा देकर बेड तक लाई। रूज को अच्छा लगा था इसका यूं हक जताना। दोनों बेड पर बैठ गई। ऐसी ने चॉकलेट इसकी तरफ बढ़ाई, जिसे रूज ने थाम लिया। तुम्हें सब कैसे लगे? रूज ने चॉकलेट की बाइट लेते बात शुरू की। सब बहुत अच्छे हैं, ऐसी ने चहकर कहा। और अरहम? अनुज ने किन अखियों से उसे देखा। ऐसी के चेहरे पर एक रंग आकर गुजरा। इसमें एटीट्यूड बहुत है। ऐसी ने नाक चढ़ाकर कहा। क्या? अपने सबसे शरीफ दोस्त पर ऐसा इल्जाम लगने पर अनुज हैरान हुई। क्या बताऊं तुम्हें? ऐसी सीधी होकर बैठी। वही जो सच है, अनुज ने मायने खेजी से कहा। ऐसी ने अनुज को घूर कर देखा। जब बताओ, तुम्हें को एटीट्यूड वाला क्यों लगा? अनुज ने बात बदली। वो ऐसी रुकी। अनुज के नकाब वाली शाम को ब्लू कलर का लहंगा पहने तेजी से सीढ़ियां उतर रही थी। इसके लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। तेज तेज सीढ़ियां उतरने की वजह से बाल आकर इसके चेहरे पर गिरे, जिससे वो गिरती गिरती बची। और हमने इसे बरबक थाम लिया। ऐसी ने इसका शुक्रिया अदा किया। नाम क्या है तुम्हारा? और हमने सबका पहले से देखा। ऐसी, और तुम्हारा? ऐसी ने बालों को पीछे डालते पूछा। 90। और हम संजीदगी से कहता कोट का बटन बंद करने लगा। ऐसी ने खूंखार नजरों से उसे घूरा। क्या मतलब? तुम मेरे नाम का मजाक उड़ा रहे हो? ऐसी ने फाड़ खाने वाले अंदाज में पूछा। क्या मतलब? तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? जवाब भी इसी के अंदाज में है। तुम लगते क्या हो मेरे, जो मैं मजाक करूं तुम्हारे साथ? ऐसी ने सीने पर बाजू बांध लिए। ऐसी, ये भी कोई नाम है? वो तमस्कर करता है कमीना। वो ज़हर लबन रही। कुछ कहा क्या? पर हमने कान को जाया।
جی آپ کی تعریف کر رہی تھی، ایسی ہی ناک چلا کر کہا۔ میں ہوں ہی تعریف کے لائق، فرحان نے گردن اکڑائی۔ غلط فہمی ہے تمہاری، ایسی تو آپ صحیح کر دیجیے۔ ارم تھوڑا آگے کو جھکا۔ دور رہو ورنہ جانتے نہیں ہو مجھے۔ ایسی نے انگلی اٹھائی تو تنبیہ کیا۔ گہرا مسکرایا، اسی کو اس کی مسکراہٹ زہر لگی۔ کمینہ، اس بار وہ اونچی آواز میں کہتی آگے بڑھ گئی تھی کہ مرچی۔ ارم نے بنا مڑے بلند آواز کہا، چھیلا ہوا آلو۔ وہ بھی اسی کے انداز میں کہتی آگے بڑھ گئی۔ بولو۔ عروج نے اسے سوچوں میں گم دیکھا۔ ایسی یکدم سوچوں سے باہر نکلی۔ عروج اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، مجھے اندازہ ہوا۔ اسی بات پلٹ گئی۔ وہ ایٹیٹیوڈ والا نہیں ہے، بہت اچھا لڑکا ہے۔ اچھا تو یہ تو مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ اسی نے مشکوک نظروں سے گھورا۔ بس یوں ہی، عروج نے کندھے جھکائے۔ اچھا اس کے لیے کیسی لڑکی بیسٹ رہے گی؟ اس کی جیسی ایٹیٹیوڈ والی؟ اسی نے لاپرواہی سے کہا۔ اچھا تم ریسٹ کرو، میں چلتی ہوں۔ ریسٹ کی ضرورت تمہیں ہے؟ آؤ میں چھوڑ دوں، ایسی نے پیار سے کہا۔ عروج نے ہاتھ اس کی اور بڑھایا۔ ایسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اسے اس کے کمرے میں چھوڑ آئی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد اس کے دماغ میں ارحم کی سوچیں تھیں۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ اسے کیوں سوچ رہی ہے۔ روز بالکنی میں کھڑی گزری زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تیز ہوا سے اس کے بال اڑ کر بار بار چہرے پر آ رہے تھے جنہیں وہ وقفے وقفے سے پیچھے کرتی۔ وہ اتنا مگن تھی اسے کسی کے کمرے میں آنے کا احساس تک نہیں ہوا۔ ذہن خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ روز کے نتوں سے بنی بنی کلمین کی خوشبو ٹکرائی۔ ڈیئر پونڈا تھی، جان سکتا ہوں تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ ذہن نے سر آگے کیے، سرگوشی بڑے انداز میں پوچھا۔ روز کی دھڑکنیں بڑھ گئی، ذہن کے ہونٹ اس کے کان کی لو کو چھو رہے تھے۔ بس یوں ہی، اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے مشکل بولی۔ ذہن اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم بھی اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ روز نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ ذہن ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بس یوں ہی، جواب عروج کے انداز میں ہی آیا۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہوگی۔ عروج، ذہن نے گمبھیر آواز میں سے پکارا۔ عروج نے پلکیں جھکا لی۔ ذہن نے عروج کو کندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ عروج بوکھلا گئی۔ میں چاہتا ہوں تمہارے بالکل ٹھیک ہوتے ہی رخصتی ہو جائے، میں اب اور تم سے دور نہیں رہ سکتا، ذہن نے گمبھیر آواز میں کہا۔ پر تم نے تو کہا تھا انتظار کرو گے۔ عروج کی صورت اتری۔ ہاں کہا تھا، مگر اس حادثے کے بعد میں ایک پل بھی تم سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ ذہن نے عروج کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ذہن نے اسے ٹوک دیا۔ پہلی بار کچھ مانگ رہا ہوں، انکار مت کرنا۔ وہ اس کے ہاتھوں سے کھیلتا بہت مان سے بولا۔ عروج کا سر جھک گیا۔ بابا سے بات کر لو، وہ جھکے ہیں۔ وہ اپنی رضامندی دے گی، اسے علم تھا ذہن نے اس کا کتنا انتظار کیا تھا۔ تھینک یو، شدید جذبات سے کہتے اس کی آواز رات کے اندھیرے میں سر بکھیر گئی۔ اگر کبھی میں تم سے کچھ مانگوں تو کیا تم مجھے دو گے؟ کسی سوچ کے تحت اس نے پوچھا۔ میری خوش نصیبی ہوگی اگر تم مجھ سے کچھ مانگو گی۔ وہ سرشار ہو گیا اس کی بات پر۔ کیا چاہیے؟ ابھی نہیں، سوچ کر بتاؤں گی۔ اوکے، اب آرام کرو۔ ذہن نرمی سے اس کے ہاتھ چھوڑ گیا۔ میں تمہیں بیڈ تک چھوڑ دوں؟ وہ جاتے جاتے پلٹا۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ ذہن مسکرا کر کہتا روم سے نکل گیا۔ وہ گہرا مسکراتی دیوار کے سہارے سے بیڈ پر آ کر بیٹھ آئے۔ تیز تیز سیڑھیاں اتر رہی تھی جب آخری سیڑھی پر اور مڑتے اس کی ٹکر کسی سے ہوئی۔ وہ سر مسلنے لگی۔ اوہ سوری، رحمان بوکھلا گیا۔ اٹس اوکے، آیت نے پیشانی مسلتے کہا۔ زیادہ تو نہیں لگی؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ آئی ایم سوری، میری غلطی تھی۔ رحمان شرمندہ ہوا۔ نہیں، میری غلطی تھی، میں ہی بے دہانی میں چل رہی تھی، آیت نے فوراً کہا۔ آپ ذہن کی بہن ہیں؟ جی، ذہن بھائی میرے بھائی ہیں، ایک ہی بات ہے۔ رحمان نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ آیت خفیف سا مسکرائی۔ عروج جمائی روکتی اپنے روم سے نکل کر ریلنگ کے پاس آ کر کھڑی تھی جب نظر دونوں پر پڑی۔ اے جے کہاں ہے؟ رحمان نے پوچھا۔ شاید وہ اس سے ملنے آیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، آیت نے اوپر اشارہ کیا۔ اوکے تھینکس، آئندہ احتیاط کرنا۔ رحمان مسکرا کہتے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ آیت کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ عروج کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ عروج پہلے سے بہت بہتر ہو گئی تھی، اب وہ بنا سہارے کے بھی چل سکتی تھی۔ اس کے ٹھیک ہوتے ہی رضامند نے دوبارہ اس کا صدقہ اتارا تھا۔ ذہن اس وقت موبائل پر لگا تھا جب عروج اس کے پاس آئی۔ السلام علیکم۔ ذہن نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ اوف، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ میری پونڈا تھی خود مجھ سے ملنے آئی ہے۔ ذہن نے دل پر ہاتھ رکھے کسی مجنون کی طرح کہا، ایک بات کرنی تھی۔ عروج تھوڑا جھجکی۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا بات کرو۔ عروج سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ عروج انگلیاں مروڑتی بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ ذہن غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں میری رخصتی کے ساتھ رحمان اور ارحم کی شادی بھی کر دی۔ وہ جھجکتے کہہ رہی گئی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر رحمان اور ارحم کی شادی عجیب نہیں ہوگی؟
ज़ैन ने आगे झुकते राज़दाराना अंदाज में कहा। रूज की आंखों में न समझी तर आई। देखो, लड़का लड़की की शादी होती है, मगर यहाँ लड़का रहमान और अरहम की शादी अजीब नहीं होगी। चेहरे पर संजीदगी थी, मगर आंखों में ज़ाज़ियत शरारत। रोज ने बात समझते इसे तीखी नजरों से घूरा। मेरा मतलब था दोनों के लिए लड़की ढूंढ कर दोनों की शादी एक ही दिन कर दे। वो मुंह बनाकर बोली, ओके डियर फूलती, जैसा तुम चाहो। और रजामंदी से देता बोला, लेकिन इतनी जल्दी लड़की कैसे ढूंढेंगे? मैंने सब सोच लिया है, रोज ने चहक कर कहा। ज़ैन मोहब्बत बाज नजरों से उसे देख रहा था। अब मैं चलती हूँ। वो घबरा कर खड़ी होगी। सिर्फ यही बात करने आई थी, मेरे साथ टाइम स्पेंड करने नहीं आई थी। ज़ैन ने मुंह को सोड़ कर कहा, नहीं, वो मुझे कुछ काम है। वो हिचकिचाई, ठीक है जी। ज़ैन संजीदा हुआ। अरूज दोबारा बैठ गई। क्या हुआ, तुम्हें काम नहीं था? इस बार लहजे में शरारत थी। नहीं, बाद में कर लूंगी। चंद पर यूं ही खामोशी की नजर हो गया। रूज उंगलियों को आपस में मसले जा रही थी। ज़ैन सोफे से टेक रहे मोहब्बत से इसे देख रहा था। तुम्हें पता है रूज, तुम यूं खामोश बैठी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। रूज पजल ली। तुम जैसे पहले लड़ती झगड़ती थी वैसे ज्यादा अच्छी लगती थी। वो शरारत से बोला। रूज ने बुरा सा मुंह बनाया। अब चलती हूँ। वो तेजी से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। माई पूंडा थी, इसके लब हिले थे। अरूज ने अरम को इमरजेंसी का कह कर बुलाया था और अब वो इसके सामने बैठा इसके बोलने का इंतजार कर रहा था। मुझे एक जरूरी बात करनी है। कौन सी जरूरी बात? अरम ने तामुल से कहा। तुम्हें कोई लड़की पसंद है? लड़की? अरम ने न समझी से कहा। हाँ, लड़की, शादी के लिए। अगर कोई पसंद है तो बता दो। नहीं, मुझे कोई नहीं पसंद, अरम ने साफ बताया। रियली? सोच लो। अरूज का अंदाज पुरस्कार था। हाँ पापा, कोई नहीं पसंद, अरम मुस्कुराया। तो भी ठीक है, जिससे मैं कहूंगी इससे शादी करोगे? अरूज बात को पत्थर पर लकीर करने लगी थी। ओके, अरहम की रजामंदी पर अरूज खुशी से चिल्लाई, मैंने तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ली है। अरूज ने जोश से बताया। इतनी जल्दी? अरहम हैरान हुआ। तो क्या बूढ़े होने का इंतजार करना है? अरूज मुंह बनाकर बोली, कौन है वो? अरहम नर्वस हुआ। पहले मेरी सुनो। अरूज सीधी होकर बैठ गई। मैं और आईसी कॉलेज में मिले जब मैं नेट का एग्जाम देने गई थी। आईसी के नाम पर अरहम चौंका। तब मुझे नहीं पता था कि मैं इससे दोबारा मिलूंगी, लेकिन फिर हमें स्कॉलरशिप मिल गई। एक ही रूम में हम 5 साल साथ रहे, साथ खाया, साथ पढ़ा, हर प्रॉब्लम का सलूशन साथ निकाला। इन 5 सालों में मैंने आईसी को बहुत अच्छे से जाना। पता है अरहम, इसकी जिंदगी नॉर्मल नहीं थी। इसने बहुत कुछ सहा और अब मैं चाहती हूँ कि रोज तो मुझसे बताती रुकी। अरहम खामोशी से इसकी बात सुन रहा था। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे वो सब दो जिसके लिए वो जिंदगी भर तरसी है। मुझे यकीन है तुम इसका ख्याल रखोगे। अरहम चौंका। ऐसे मुझे बहनों की तरह अजीज है, क्या तुम इसे अपनी जिंदगी में शामिल करोगे? रोज ने एक आवाज से पूछा। अरहम सर झुका गया। क्या हुआ, वो तुम्हें पसंद नहीं? रोज का चेहरा उतर गया। जैसे तुम्हारी मर्जी। इसने सर उठाया तो वो मुस्कुरा रहा था। सच? अरूज खुशी से उछली। देखो, कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम अच्छे से सोच लो। अरूज ने अपनी खुशी पर काबू पाते कहा, एजे, मैंने ये हक बहुत साल पहले तुम्हें दिया था और अब भी अपनी बात पर कायम हूँ। तुम जिससे कहोगी इससे मैं आंखें बंद करके शादी कर लूंगा। अरूज की आंखें भीग गईं। यू आर सो स्वीट। वो किसी छोटे बच्चे की तरह सो करती बोली। यू टू, अरहम मुस्कुराया। लेकिन क्या तुमने इससे बात की? अरहम ने याद आने पर पूछा। अभी नहीं, पर तुम फिक्र मत करो। अरूज ने आंखें साफ करते कहा। अरहम मुस्कुराया। वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी जिस पर इसे आंखें बंद करने जैसा यकीन था। अरूज को ढेरों सुकून मिला था। अरहम से बात करने के बाद अरूज ने सारा मामला रज़मीर से और अदन से डिस्कस किया। दोनों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अरूज ने रज़मीर को खुद आईसी से बात करने का कहा। आईसी इनके सामने कंफ्यूज सी बैठी उंगलियां मरोड़ रही थी। देखो बेटा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ। तुम मुझे बड़ी की तरह अजीज हो। तुम्हारा फैसला सर आंखों पर, रज़मीर ने बहुत नरमी से कहा। ऐसी की आंखें भर आ गई। बाबा, आपका हुक्म सर, आंखों पर मुझे कोई इतराज नहीं है। इसलिए नम आंखों से मुस्कुरा कर कहा। रज़मीर के लफ्जों ने इसे सरशार कर दिया था। इनकार की गुंजाइश ही नहीं थी। एक बार फिर सोच लो मेरी बच्ची। रज़मीर ने दोबारा अपनी तसल्ली करनी चाहिए। जी बाबा, जैसे आपकी मर्जी। में नजरें झुका गई। खुशी से तो रूज के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। मुबारक हो। रूज ने इसके कान के करीब से खुशी की, जिस पर वो ब्लश हुई। अल्लाह, लड़की ब्लश कर रही है। अब रूज की बारी थी इसे तंग करने की। ऐसे झुका सर मजीद झुका गई। अदन और रज़मीर ने ढेरों बुलाई ली थी इनकी। मुबारक हो। रूज मिठाई का डब्बा थामे खुशी से चिल्लाई। सभी जवानों ने एक साथ इसे देखा। बहुत मुबारक हो। रूज ने मिठाई का डब्बा अरहम के आगे किया। इस खुशी में अरहम ने बर्फी उठाते तजस्सुस से पूछा, बताती हूँ, पहले मिठाई तो खाओ। रूज ने एक पीस उठाकर इसके मुंह में डाला। सब हैरत और तजस्सुस से इसे देख रहे थे। रूज ने बारी बारी सबको मिठाई खिलाई। अब बता भी दो। तो मैंने बेताबी से पूछा। बात यह है कि अरहम का रिश्ता पक्का हो गया है। रूज ने डब्बा टेबल पर रखते हिलानियां कहा। कब, कैसे, किसके साथ? हमें क्यों नहीं बताया? कई सवाल इसकी ओर उछले। सबर को बताती हूँ। रूज ने हाथ की इशारे से कहा। सभी खामोश हो गए। बात यह है कि अरहम के
رشتہ میں نے پکا کیا ہے ایسی کے ساتھ، عروج نے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ سب حیرانی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں ارحم کو دیکھنے لگے۔ مبارک ہو، سعد نے آگے بڑھ کر اسے مبارکباد دی۔ رحمان نے بھی اسے گلے لگائے، مبارکباد دی۔ ارحم چمٹے چمٹے سب سے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ طبع نے حیرت سے پوچھا۔ یہ سب میرا کمال ہے، عروج نے اتراتے کہا۔ سب خوش تھے اور سب سے بڑی خوشی عروج کے لیے تھی جو اپنی روم میں لوٹ آئی تھی۔ تم تو بڑے چھپے رستم نکلے، سعد نے اسے کندھا مارا۔ جواب میں ارحم نے اسے بولا، ایک اور نیوز ہے۔ عروج نے دوبارہ سب کو خاموش کروایا۔ ارحم اور رحمان کی شادی ایک ہی دن ہوگی اور وہ بھی میر مینشن میں۔ رحمان پوچھا، کیا تم نے اس کے لیے بھی لڑکی ڈھونڈ لی؟ ابھی نہیں، بس ویٹ کرو، عروج نے کہا۔ رحمان ساری گفتگو میں خاموش رہا، باقی سب ارحم کو چھیڑنے میں مصروف تھے۔ ایسی شرمائی سی اپنے کمرے میں بند تھی۔ ایسی کے لیے ارحم سے اچھا لڑکا ہو ہی نہیں سکتا تھا، عروج نے سوچا۔ کبھی کبھی وہ سوچتی شاید ایسی اسے ملی ہی اس لیے تھی کیونکہ وہ ارحم کی قسمت میں ازل سے ہی لکھ دی گئی تھی۔ عروج لون میں بیٹھی کافی پی رہی تھی جب طوبا وہاں آئی۔ دعا گھاس پہ بیٹھی کھیل رہی تھی۔ ایک بات بتاؤ، طوبا نے ٹوٹی تلے ہاتھ رکھے کہا۔ ہاں پوچھو، عروج دعا کو دیکھتی مسکرا کر بولی۔ رحمان اور ارحم کی شادی ایک ہی دن کیسے رکھنے کا مقصد؟ کیوں، کوئی پرابلم ہے؟ عروج نے کپ ٹیبل پر رکھتے ہی حیران ہوتے پوچھا۔ نہیں یار، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ تو پھر دیکھو یار، اتنے سالوں بعد اس گھر میں خوشیاں آئی ہیں تو میرے پاس ایک پلان ہے۔ طوبا نے رازداری سے کہا۔ کیا پلان؟ عروج کی آنکھیں چمکی۔ دیکھو، اگر ایک ہی دن میں شادی کمپلیٹ ہو جائے گی تو سارا مزہ ایک ہی دن میں ختم۔ طوبا نے بڑا سا منہ بنایا۔ تو پھر؟ عروج الجھی۔ تو یہ کہ پہلے تمہاری رخصتی ہو جائے، پھر تمہارے ولیمے کے اگلے دن ارحم کی مہندی، پھر اس کی برات اور پھر اس کا ولیمہ۔ طوبا نے انگلیوں پر گنوانا شروع کیا۔ پھر اس کے ولیمے کے اگلے دن رحمان کی مہندی، پھر برات اور پھر ولیمہ۔ ایسے بہت سے دن اس گھر میں رونق لگی رہے گی اور بہت سارا مزہ آئے گا۔ طوبا ایکسائٹڈ سی ہو گئی۔ واہ طوبا، دیٹس اے گریٹ آئیڈیا۔ عروج کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ عروج نے یہی بات ضمیر کو بتائی۔ وہ اپنی بیٹی کی حرکتوں کو دیکھ بس مسکرا کر رہ گئے۔ سب بہت خوش تھے۔ کوئی نہیں تھا تو وہ رحمان۔ عروج کی رخصتی کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ عروج نے ادن کو مزید وہاں روک لیا۔ اس کی چھٹیوں کا مسئلہ تھا جسے عروج نے طیبہ سے کہہ کر حل کروا لیا تھا، جس سے ادن کو لمبی لیو مل گئی تھی۔ کل زین اور آیت کی واپسی تھی۔ بارات حیدرآباد سے فارم ہاؤس اور وہاں سے میر مینشن آنی تھی۔ آیت بور ہو رہی تھی، اس لیے کچن میں چلی آئی جہاں سدرا چائے بنا رہی تھی۔ آپ کچن میں کچھ چاہیے؟ سدرا نے پوچھا۔ نہیں، میں گھر میں بور ہو رہی تھی تو سوچا کوئی کام کر لوں۔ آیت نے کہا۔ آپ کام کیوں کریں گی؟ گھر میں بہت سے ملازم ہیں کام کرنے کے لیے۔ سدرا نے فوراً انکار کیا۔ کوئی بات نہیں، گھر میں ملازم ہی کام کریں، ضروری تو نہیں آپ مجھے کوئی کام دیں پلیز۔ آیت نے ریکویسٹ کی۔ ٹھیک ہے، آپ یہ چائے رحمان صاحب کو دیں۔ سدرا نے چائے کا کپ ٹرے میں رکھ کر اسے دیا۔ آیت پہلے تھوڑا ہچکچائی، پھر ٹرے تھام کر شکریہ کے ساتھ باہر نکلی۔ اب اس کا رخ لون کی طرف تھا۔ رحمان کے حصے فون پر بات کر رہا تھا۔ کالا کوٹ کرسی سے جھول رہا تھا۔ آیت نے ہچکچاتے ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ رحمان نے فون کاٹتے کان سے ہٹا کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ السلام علیکم، آیت نے دھیمے سے کہا۔ وعلیکم السلام، آپ چائے کیوں لائیں؟ رحمان کون کا شرمندہ ہوا۔ کوئی بات نہیں، آیت نے دھیمے سے کہا۔ نظریں جھکی تھیں۔ بہت شکریہ، رحمان نے کپ اٹھایا۔ کوئی بات نہیں، دوبارہ وہی جملہ۔ آپ کرتی کیا ہیں؟ کپ کو ہونٹوں سے لگاتے سوال کیا۔ اسٹڈی کرتی ہوں۔ اور رحمان مسکرایا۔ اور آپ شاید لویر ہیں؟ آیت نے کورٹ کی طرف اشارہ کیا۔ جی، بجا فرمایا۔ آیت حیران ہوئی۔ کیا ہوا، کچھ غلط کہا؟ رحمان نے اس کی حیرانی بھانپتے پوچھا۔ آپ اتنی اچھی اردو کیسے بول لیتے ہیں؟ اس کی بچکانہ بات پر رحمان مسکرایا۔ سیکھی تھی۔ اوہ، آپ کھڑی کیوں ہیں؟ بیٹھ جائیں۔ آیت ہچکچاتے بیٹھ گئی۔ نظریں ٹیبل پر جمی تھی۔ ایک بات پوچھوں، آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ رحمان نے ہچکچاتے کہا۔ جی پوچھیں۔ نظریں نوچ چکی تھی۔ ایجی اور زین کیسے ملے؟ آپ کو پتہ ہے ان کی سٹوری؟ جی مجھے پتہ ہے، پر ان کی سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آیت جوش سے بولی۔ اوکے، اگر آپ کا ٹائم ہے تو سنا دیں۔ رحمان اس کے انداز پر مسکرایا تھا۔ جی میرے پاس ٹائم ہے۔ آیت جو بور ہو رہی تھی، اسے موقع مل گیا تھا ٹائم سپینڈ کرنے کا۔ تو سنیں، بھائی اور عروج کالج میں ملے تھے۔ کالج میں؟ رحمان حیران ہوا۔ تو کیا عروج نے اپنی پڑھائی کا آخری سال پورا کیا تھا؟ اس نے سوچا۔ پھر بھائی نے عروج کی ریگنگ کرنے کی کوشش کی اور پتہ کیا ہوا؟ آیت زور سے ہنسی۔ رحمان دونوں کونیاں ٹیبل پر ٹکائے سے دیکھ اور سن رہا تھا۔ عروج نے الٹا بھائی کی انسلٹ کر دی، وہ ہنستے ہوئے بتا رہی، اور رحمان اس معصوم سی بڑی پیکر کو دیکھ رہا تھا۔ عروج ٹھنڈی ہوا کے لیے بالکنی میں آئی جہاں اس کی نظر آئے تو رحمان پر پڑی جو ہنستے مسکراتے باتیں کر رہے تھے۔ عروج نے دل ہی میں ان کی ڈھیروں بلائی نہیں جب لڑکی گھر میں ہے تو بھائی ٹائم خراب کرنے کی کیا ضرورت؟ عروج ہم کلام ہوتی زین کے کمرے کی طرف چل دی۔ آیت ہر بہر رحمان کو ساری سٹوری بتا رہا تھا۔ رحمان حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کی ایج کیا ہے؟ رحمان نے اسے ٹوکتے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی
وہ تھوڑا حیران ہوئی. آپ کی ایج 22. آیت نے بزر اترتا ہے. پر آپ تو دکھنے میں چوئی موئی سی لگتی ہیں. رحمان جی بن کر حیران ہوا. آیت کھلکھلا کے ہنس دی. اس کی ہنسی رحمان کے چلتے دل پر ٹھنڈی پھوار جیسی تھی. وہ یک ٹک سے دیکھنے لگا. آیت اس کے یوں دیکھنے پر پزل ہوگی. رحمان گلا کنکال کسیدہ ہوا. بہت انٹرسٹنگ اسٹوری تھی. رحمان خود بھی پزل ہوا. جی. آیت اتنا ہی بولی. ارے آپ کی چائے تو ٹھنڈی ہوگی, میں اور لے آتی ہوں. آیت اٹھی. نو اٹس اوکے, ابھی مجھے نکلنا ہے. رحمان بھی کھڑا ہو گیا. پر آپ نے تو چائے پی ہی نہیں. آیت نے معصومیت سے کہا. کوئی بات نہیں, میں زیادہ تر یہی پایا جاتا ہوں, تو بعد میں پی لوں گا. ابھی چلتا ہوں. اللہ حافظ. رحمان آخری نگاہ اس پر ڈالتا اپنا کوٹ اٹھائے پورچ کی طرف چل دیا جہاں اس کی کار کھڑی تھی. اللہ حافظ. آیت نے دھیرے سے کہا. اس کی نظریں چاہتے ہوئے رحمان کی پشت پر تھی. عروج نے زین کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا. کمرے اندر سے مسرور سی آواز آئی. عروج دروازہ کھولتی اندر آئی جہاں زین پیکنگ کرنے میں مصروف تھا. عروج کو دیکھ سے خوشگوار حیرت ہوئی. زین کپڑے چھوڑتا سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا. میں کروں پیکنگ؟ عروج نے آگے بڑھتے اس کے ہاتھ سے کپڑے تھامے. نو ڈیئر پنڈا تھی, پہلے گھر آ جاؤ, پھر یہ سب کام کرنا. زین نے کپڑے واپس لیتے کہا. میں کر دیتی ہوں. عروج نے دوبارہ کپڑے تھامے. اوکے, ایز یو وش. وہ کہتا آرام سے ایک سائڈ ہو گیا. عروج کپڑوں کو تہہ لگاتی بیگ میں رکھنے لگی. عروج کپڑے طے کرتی منہ میں صورتیں پڑ رہی تھی. زین بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا. سارے کپڑوں میں کوئی ایک ہاتھ ہی دوسرے رنگ کا ہوگا, ورنہ سارے بلیک ہی تھے. لگتا ہے بلیک کلر تمہارا پہلا پیار ہے. عروج نے بیگ کی زپ بند کرتے کہا. ہاں, وہ مجھ سے بولا. نظریں ابھی بھی اسی پر تھی. اس کی نظروں سے عروج پنسل ہونے لگی. اور دوسرا جھجکی میری امی, تیسرا ڈیڈ, چوتھا آیت. عروج نے منہ بنایا. اور پانچواں؟ وہ آخری کوشش کرتی دوبارہ بولی. میری کار. اطمینان سے بولا. عروج برا سا منہ لیے بیگ ایک طرف رکھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا. زین دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا جو منہ میں کچھ بڑبڑائی جا رہی تھی. یہ نہیں پوچھو کہ میرا عشق کون ہے. زین اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا. عروج کا دل بری طرح دھڑکا تھا. زین نے اس کے موم ہاتھوں کو پکڑ لیا. پوچھو گی نہیں؟ اس کے ہاتھوں کی پشت کو اپنے گھٹنے سے چلایا. محبت سے چور لہجے میں بولا. کون ہے؟ عروج نے اٹکتے پوچھا. تم. 3 لفظوں نے اس کا سانس چند لمحوں کے لیے بند کر دیا. تم ہو میرا عشق. 5 سال پہلے اس نے انہی لفظوں میں اپنی محبت کا اظہار کیا تھا, اور آج 5 سال بعد وہ انہی لفظوں میں اپنے عشق کا اظہار کر رہا تھا. دوسرا تم, تیسرا تم. وہ کھلکھلا کر ہنسی. وہ بھی کھل کر مسکرایا. کچھ مانگو تم سے. کتنے حق سے کہا گیا. مانگو. وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا. دو گے؟ یقین کرنا چاہا. مانگو. پرومس دو گے. مانگو. تیسری بار بھی وہی الفاظ. آیت دے دو. وہ جھجکتے دل سے کہہ گئی. زین نے سمجھ سر ہلائے. وہ تمہاری بھی اتنی ہی ہے جتنی میری ہے. اس نے بات کو نہ سمجھی میں ڈالا. ہاں, پر مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے. عروج نے ٹھہرے ٹھہرے کہا. تو نظروں میں سوال تھا. آیت دے دو رحمان کے لیے. زین نے ایک دم اس کے ہاتھ چھوڑ دی. کیا کہہ رہی ہو؟ وہ بے یقینی سے پیچھے ہوا. آیت کا رشتہ رحمان کے لیے. عروج نے زبان کو تر کرتے کہا. زین بنا کچھ کہے اٹھ کر دور جا کھڑا ہوا. عروج کی طرف اس کی پشت تھی. جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ چند لمحوں بعد اس کی سرد آواز گونجی. اس میں کچھ غلط نہیں ہے. میں عزت سے اس کا رشتہ مانگ رہی ہوں. عروج کو اس کا رویہ عجیب لگا. ہاں, مگر ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے. میں ایسے انسان کو اپنی بہن کیسے دوں جس کا ماضی اتنا برا ہے؟ اس کی آواز اونچی تھی. میں مانتی ہوں, مگر وہ اس کا ماضی تھا. اب اس کا فیوچر ہے جو انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. مجھے نہیں منظور. وہ بات ہی ختم کر کے عروج بے یقین سے اس کی پشت دیکھ رہی تھی. کیوں؟ میں اس کا بھائی ہوں, اور ایک بھائی ہونے کے ناطے میں یہ حق رکھتا ہوں کہ اس کے لیے صحیح غلط کا فیصلہ کروں. زین پلٹا. میں مانتی ہوں, مگر رحمان برا نہیں ہے. عروج نے وضاحت دی. میں اسے برا نہیں کہہ رہا, لیکن جس کے دل میں کوئی اور ہو. اس کے ساتھ اپنی بہن کی شادی نیور. فیصلہ اٹل تھا. بعض دفعہ اپنوں سے بھی کچھ باتیں راز ہی رکھی جائیں تو بہتر ہے. عروج کو آج سمجھ آیا. وہ اسے بھول چکا ہے. اس نے کمزور سی دلیل دی. تم سے اس نے کہا ایسا؟ نہیں تو میں جانتی ہوں. عروج نے سر جھکایا. اگر وہ اسے بھول چکا ہے تو اس نے ابھی تک شادی کیوں؟ زین نے اسے لاجواب کر دیا. وہ خاموش رہی. زین جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھ رہا تھا. مجھے دونوں ساتھ اچھے لگتے ہیں, اس لیے کہا. چل وہ بعد میں بولی. سر ہنوز جھکا تھا. تم نے ان دونوں کو ساتھ کر دیکھا؟ زین نے چمبے سے کہا. تمہیں سے کیا؟ وہ سر اٹھائے سرد مہری سے بولی. دیکھو عروج, میں اگر آیت مان جائے تو. عروج نے اسے ٹوکتے کہا. اگر وہ مان جائے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. وہ دھیرے سے بولا. میں نے بہت مان سے مانگا تھا اسے تم سے. اگر آیت منع کرتی تو مجھے اتنا برا نہیں لگتا, مگر گلے میں آنسو کا پھندا اٹک گیا. مان دیتے ہی کیوں ہو اگر توڑنا ہی ہوتا ہے. وہ بہتے آنسو کے ساتھ سے روم سے نکلی. زین شرمندہ سا کھڑا رہ گیا. وہ بھائی تھا, اس کا حق رکھتا تھا, مگر عروج کو کیسے سمجھاتا؟ ضمیر کو بتانے پر وہ تھوڑے حیران ہوئے, پر پڑی ہی کیسے؟
हाँ या ना बाबा, ये बताएं आप रहमान की तरफ से आयत के हाँ बाबा से बात करेंगे। अरूज ने इनकी बात काटते दो टोक पूछा, ठीक है मैं करूंगा बात। थोड़ी देर की सोच के बाद उन्होंने हामी भरी। बाबा, अरूज खुशी से इनसे चिमट गई। पर तुमने रहमान से बात की? रजामी ने इसके सर पर शक्ल भरा हाथ रखते पूछा। बाबा, मुझे इस पर पूरा भरोसा है, वो ना नहीं करेगा। अरूज ने मान से कहा था। अरूज और रजामी जहन और आयत को एयरपोर्ट छोड़ने आए थे। दोनों में दोबारा कोई बात नहीं हुई, दोनों ही एक दूसरे से नाला थे। आयत अरूज से मिलती रजामी के पास आई। रजामी ने इसके सर पर शक्ल भरा हाथ रखा। जैन ने अरूज को देखा जो इसे नजरअंदाज करके इधर उधर देख रही थी। जैन को बुरा लगा था इसका नजरअंदाज करना। जैन रजामी से मिलता ही कर देता, नजर अरूज पर डालता। आयत के हमरा चल दिया। अरूज की नजरों ने दूर तक इसका पीछा किया था। आज काफी दिन हो गए थे इन्हें ये ना ही अरूज ने इसे फोन किया, ना ही जैन ने इसे। इस वक्त पांचों स्टूडियो में मौजूद है, एक दूसरे के सामने बैठे। पांचों अजीब सी कैफियत का शिकार थे। तुम्हें पता है जी, तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ जैसे फीका सा हो गया था। हर चीज में रंग खत्म हो गए थे। बहुत याद आती थी तुम्हारी। तो बने रुंधी आवाज में कहा। रोज फीका सा मुस्कुराई। क्यों गई थी छोड़कर? शिकवा आराम की तरफ से आया। अगर मैं नहीं चाहती तो तुम अक्षय से और हम कैसे बनते? अनुज ने इंसानियत से कहा। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद हम सब ने उर्दू सीखी थी। साद ने इश्ताक से बताया। अच्छा, फिर तो मैं तुम सबका उर्दू का टेस्ट लूंगी। रोज जोश से बोली। ओके, चारों सीधे होकर बैठे। जो लफ्ज बोलूंगी 3 लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। चारों ने सर हिला दिया। रोज तुबा की तरफ मुड़ी। गलिया, रोना, बैपिंग, लैब, नासा, कमजोर, नर्बल, पावरलेस, दहर, दुनिया, संसार, वर्ल्ड, दोस्ती। स्टूडियो में खामोशी छा गई। सवाल रहमान से था। भरोसा, एतबार, ब्लाइंड ट्रस्ट और एजे। अरूज मुस्कुराई थी। तुमने स्टडी का आखिरी साल पूरा किया? रहमान ने याद आने पर पूछा। हाँ, जवाब मुख्तसर था। तुम तो कहते थे मुसलमान बेवफा धोखेबाज होते हैं, तो फिर तुमने इस्लाम क्यों कबूल किया? ना चाहते भी जुबान पर तंज आ गई। क्योंकि मैं गलत था। मुसलमान बेवफा धोखेबाज नहीं होते, वो फदर होते। इन जैसा कोई नहीं होता। वो दूसरों के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देते हैं। वो नदामत से सर झुकाए कह रहा था। मैंने बाबा से कहकर जैन के पेरेंट्स से तुम्हारी और आयत के रिश्ते की बात की है। रहमान अपनी जगह से उछला। बाकी तीनों भी शौक की कैफियत में से देखने लगे। एजे, वो छोटी है मुझसे, ये सब कैसे? लड़की हमेशा लड़के से छोटी ही होती है। रूज ने संजीदगी से कहा। पर एजे, क्या तुम मना कर रहे हो? अरुण ने सख्ती से टोका। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। रहमान से पटा गया। तुम बताओ, आय से शादी करोगे? रहमान बेबस से इसे देखने लगा। तीनों खामोशी से बैठे थे। क्या मैं इतनी अच्छी लड़की को डिजर्व करता हूँ? इसने जैसे खुद से पूछा। हाँ करते हो। जो हो चुका इस पर मातम करने के बजाय जो मिल रहा है इस पर शुक्र करो। रोज ने अपना लहजा मुबारक देखा। रहमान मस्तरब सा खड़ा था। तुम बताओ, करोगे शादी? भेजे मैं हाँ या ना, और फिर सख्ती से कहोगी ठीक है जैसे तुमको। और दिल पर पत्थर रखकर कह गया। वो नहाल होगी। मुझे पता था तुम मेरी बात कभी नहीं टालोगे। अरूज के अंग अंग से खुशी फूटने लगी। तीनों भी खुशी से धले थे। रहमान, तुमने हाँ कहकर मेरी सारी तकलीफें दूर कर दी। सारा हिसाब बराबर हो गया। वो सरशार सी गली रहमान जबरदस्ती मुस्कुराया था। अरूज रजामी को काली हैदराबाद जाने का कहकर अपने कमरे में जब इसका फोन रिंग हुआ, नंबर देकर अरूज ने मुंह बनाकर कॉल काट दी। दोबारा कॉल आने पर उसने गुस्से से मोबाइल कान से लगाया मगर खामोश रही। दूसरी तरफ भी गहरी खामोशी थी। कैसी हो? चंद लम्हों की खामोशी के बाद इसकी भारी आवाज सुनाई दी। तुम्हें इससे क्या? वो रुका। इससे बोली। नाराज? गंभीर आवाज में पूछा गया। नहीं, नाराजगी से कहा गया। आई एम सॉरी। वो इतनी नरमी और मोहब्बत से बोला। रूज के दिल में एक तारीफ बीट में इसकी। बोलो कुछ। इसकी खामोशी पर वो गहरी सांस लेता बोला। क्या बोलूं? दूर बैठे भी वो शर्मा रही थी। नाराज हो? फिर वो इस वक्त थी। इसके मुझसे कहने पर जैन के दिल से ढेरों बोझ उतर गया। आई लव यू। वही आवारगी वाला लहजा। अरूज ब्लश हुई। कभी इसका जवाब भी दे दिया करो। वो बेचारी से बोला। मेरी मर्जी। वो शरारत से बोली। जैन गहरी सांस भरकर रह गया। रुश्ती में 3 हफ्ते बाकी हैं। रूज और ऐसी हॉस्पिटल जाना शुरू हो गई। साथ जोर शोर से अदन के बेटे की तलाश में था। बहुत मेहनत के बाद एक क्लू हाथ आया। अदन का शोर दिल्ली में ही रहता था। जारी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज।